as we started. Yes. Is this visible to you? आपको visible है screen? Yes. Okay, great. Now, so we are going to learn how to conduct an effective webinar, the first webinar or any webinar. So this is a wonderful kind of showcasing exercise wherein we showcase our skills, our expertise, and through webinars, we prove that we are an expert in that particular field, and people consider us as an expert because a lot of question answers happens over there, wherein people ask certain questions and you answers. When you answer questions of people ad hoc, all of a sudden different kind of questions, and it all happens simultaneously and suddenly. And if you can answer those questions, then what people understand that you are actually expert of that particular field. And this way, webinar can prove you as an expert of your field. Second thing, webinar is a way to meet one-on-one, wherein you can see myself, my face, I can see your face. We are connected through all our senses, and we are just in the single orientation. You are learning something and I'm just delivering something, and we are doing a brainstorming. You are in need of something which is I'm delivering to you. That's why we both are connected together. And this way it happens like a mutual understanding, mutual learning kind of thing. So webinars are wonderful way of connecting people and making them learn, making them aware. So that exercise we are going to learn. And in this lockdown period, this has increased massively, that everywhere there are webinars. So the people who were not so much comfortable even speaking on those topics, now they are fluently delivering their topics on webinars. They are experienced now because they have done the same thing again and again. वही बात रोज कर रहे हैं. वेबिनार हमें लोगों से कनेक्ट करने में, हमें अपना एक्सपर्ट प्रूव करने में बड़े काम आ रहा है. और जब एक ही काम बार बार करते हैं तो आप उसके मास्टर बन जाते हो. तो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी बोलने में, वो भी बहुत अच्छी तरह से बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने लॉकडाउन में. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वेबिनार का? वेबिनार इज हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव टू लर्न हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, how you can make an influence upon them, how you can persuade them, how you can convince them, how you can share content with them in a live way, how you can share your ideas with the people, how you can share your knowledge with the people, how you can share your experiences with the people. So ये सारी चीजें वेबिनार के थ्रू बड़ी आसानी से हो सकती हैं, जहां आप लोगों को प्रभावित करना सीखते हैं, जहां आप लोगों को मनाना सीखते हैं, जहां आप लोगों को इम्प्रेस करना सीखते हो, जहां लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करते हो. तो आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं कि वेबिनार का स्कोप क्या है, यूज क्या है, पर्पस क्या है, गोल्स क्या हैं, कैसे वेबिनार प्लान करते हैं, कैसे वेबिनार की मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट को डिलीवर कैसे करते हैं, और लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं. ये बातें आज हम यहाँ सीखने वाले हैं. ग्रेट. अनसब सईद की डेट भी आ गई 30 अगस्त. बहुत बढ़िया. आप सबकी तारीखें फिक्स हो गई हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो हाउ वी कैन प्लान अ वेबिनार. सो व्हाट इज वेबिनार एक्चुअली? सो वेबिनार इज अ वेब बेस्ड सेमिनार, वेब बेस्ड सेमिनार्स, just a place where multiple people get collected and one people speaks about the expertise and the experience and knowledge. जहां एक आदमी अपनी बात दूसरे लोगों को कहता है और वो सारे लोग उसे सुनते हैं,
ऐसा वेब बेस्ड लोगों का ग्रुप एक वेबिनार कहलाता है। अगर वो हम बिना वेब के करें, ऑफलाइन मोड में करें, तो वो सेमिनार होगा। वहीं अगर उसे वेब पे करते हैं तो वो वेबिनार होगा। इसलिए हम वेब पर जो वेबिनार करते हैं उसे वेबिनार कहते हैं। वेब बेस्ड सेमिनार इज कॉल्ड वेब वेबिनार। ना इसका पर्पज क्या है, क्यों हम करते हैं इसे, तो मैं तीसरी बार इस बात को बता रहा हूं। थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंड शेयर विद यू। So why webinars are being conducted? Webinar is a good way, webinar एक अच्छा तरीका है to demonstrate your product and services। आपके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को दिखाने का, समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। Second, showcase your expertise. In case you are expertise in speaking, in case you are expertise in something convincing, you are expertise in marketing, whatever skill you have, in case you want to showcase it, अगर आपको अपनी किसी क्षमता को लोगों को दिखाना है तो वेबिनार एक अच्छा साधन हो सकती है। You can showcase your expertise. And third, webinar is not only a sales pitch. It's a sales pitch. But it is not only a sales pitch. It is not about you. It is about providing value for the participants. यहां समझना, ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है। In case you are thinking that webinar is just a showcasing platform, showcasing activity of you or your product, you are mistaking. अगर आप ये समझते हैं कि आपको आपके ज्ञान को, आपके प्रोडक्ट्स को दिखाने का तरीका है, तो आप गलत हैं। यहां वेबिनार में आपको लोग तभी देखने आएंगे, सुनने आएंगे, समझने आएंगे जब आप उनकी जिंदगी में कोई चेंज लाने वाले होंगे, वेदर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे या उनकी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। इफ अ वैल्यू इज बीइंग एडेड और अ प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, देन ओनली पीपल कम टू यू। आज आप जितने लोग यहाँ हैं वो मेरे भले के लिए नहीं आए। आई एम सॉरी, आपको मेरे को फीस देनी भी मेरे भले के लिए आपका कोई इंटेंशन नहीं था, ना होगा। यू आर हियर जस्ट टू गेट समथिंग फॉर योर बेनिफिट। यहां कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, इसलिए आप आए। तो यहां जब भी कोई आदमी कुछ कदम बढ़ाता है, उसका फायदा होता है तो कदम बढ़ाता है। तो आपको भी अपनी वेबिनार में जब लोग लाने हैं तो एक बात पर ध्यान रखना है कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, whether through products or through your services. You have to add value in the lives of the people. You have to solve their problems. In case you can solve their problem, in case you can solve their life issues, in case you can add value to their life, career and profession or business, then people will come in your webinars to listen you. फिर लोग आपको देखने आएंगे। तो जब भी आप वेबिनार करेंगे तब आप लोगों की जिंदगी में आपकी वेबिनार क्या वैल्यू ऐड करती होगी, तो आपके पास लोग आएंगे और रुके रहेंगे। जैसे आज आप आए हो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वेबिनार से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ वेबिनार से मैं भी वेबिनार कर सकती हूँ, मैं भी वेबिनार कर सकता हूँ। ठीक है, मीजू सो आप भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस दिलाना, ये वैल्यू ऐड कराना यहाँ मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर दैट आई एम गिविंग यू द वैल्यू सो दैट योर लाइफ विल अपग्रेड लिटिल बिट एंड यू विल बिकम एबल टू डिलीवर वेबिनार्स फ्रीली, इंडिपेंडेंटली। ये बात मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ हो इस वेबिनार में, नहीं तो नहीं रुकेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और पॉसिबल वेबिनार यूज क्या होते हैं, ट्रेनिंग देना लोगों को, मीटिंग्स कंडक्ट करना, प्रेजेंटेशन देना, कोलैबोरेशन होना, मार्केटिंग करना, इंफॉर्मेशन सेशंस रखना, ये पर्पस होते हैं वेबिनार्स के जनरली। इन पर्पजेस के बाद अब इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रूव्ड बेनिफिट्स ऑफ वेबिनार्स। एज पर मेक सोशल मीडिया सेल्स सर्वे, इनकी सर्वे के हिसाब से वेबिनार्स रिटेन 40% ऑफ व्यूअर्स अटेंशन। व्यूअर्स अटेंशन 40% रहती ही रहती है, एंड बिटवीन 20 to 40% आपके वेबिनार से लीड्स क्वालिफाई होते हैं। आप लीड जनरेट करते हो, लीड्स क्वालिफाई कर लेते हो आप,
20 to 40% आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो वेबिनार में ही, एंड बिटवीन 2 to 5% वेबिनार अटेंडेes विल बाय समथिंग फ्रॉम यू। 5% लोग आपकी वेबिनार से परचेज करते हैं, आज नहीं तो कल। तो वेबिनार में अगर आप 100 लोग बुला रहे हो तो आपके 5 प्रोडक्ट ऑन स्पॉट बिक सकते हैं। 2 to 5% you can sell your products in case you pitch and put your products right way। अगर सही तरीके से आपने उसकी वैल्यूज लोगों को एक्सप्लेन कर दी तो ऑन स्पॉट 2 to 5% आप सेल कर सकते हो, या उसके बाद सेल हो सकती है। तो ये वेबिनार के फायदे हैं और प्रूव्ड फायदे हैं। तो हम क्या करेंगे, वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे बेस्ड अपॉन आर स्किल्स, आर बेटर पार्ट ऑफ आर प्रोडक्ट्स, तो हम वहीं सेल कर सकते हैं। अब वेबिनार में करना क्या पड़ता है, डिफरेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग वेबिनार। वेबिनार में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज होती है, स्क्रीन शेयर करना पड़ता है, व्हाइट बोर्ड एनिटेशन भी यूज करना पड़ सकता है, टेक्स्ट चैट होती है, वहाँ ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, वहाँ पोल्स हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, एंड दीज आर द की प्रोसेसेस ओवर देयर। ये 7 चीजें वहाँ होती हैं जनरली। नाउ विच आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन कंडक्ट वेबिनार्स? वेबिनार्स, फॉर वेबिनार यू वुड रिक्वायर मीडिया। आपको वहाँ कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पर ये वेबिनार आप कंडक्ट करेंगे। सो टू कंडक्ट वेबिनार यू माइट हैव Zoom, Webex, GoToWebinar, GoToMeeting, Get Webinar Kit, Webinar Jam, Easy Webinar, and so many other platforms are there। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। In case you are going for Zoom, then Zoom charges for meeting conduction आपको 40 मिनट्स का फ्री है। It is free for 40 minutes, it's free for 40 minutes everywhere। आपको 40 मिनट्स का फ्री है, but you cannot record these 40 minutes sessions over there। आपको अगर प्रॉपर अपने लिए लॉन्ग टर्म कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, देन यू हैव टू पे सर्टेन मनी टू देम। आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा कितना होगा, इन केस यू हैव अ रेगुलर रिक्वायरमेंट देन प्लीज गो फॉर अ पेड सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज यू कैन यूज दिस फ्री सब्सक्रिप्शन। एंड Margdarshan Guru People Trainers platform has paid subscription। All the learners here in Prime batches, in case they want to conduct 1 or 2 webinar in a month, so they are allowed to use this platform free of cost। You need not to pay anything। You can use this for unlimited times। The just time is required to set in the way that our classes are not classy। आप हमारा वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। जब आपको लगे आपको फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करनी है, देन ओनली यू गो एंड बाय अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, अदरवाइज आप इसका फ्री में कर सकते हैं। हमारा वाला प्लेटफॉर्म आप यूज करें शुरू के 1-2 के लिए, नो वरी, आप कर सकते हैं, एंड यू हैव राइट टू डू दिस। तो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप इनमें से किसी पर भी एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे। But out of this all, Zoom is so sophisticated and user friendly। लोग Zoom को ज्यादा पसंद करते हैं because they are addict to this। बहुत लंबे समय से लोग Zoom को यूज कर रहे हैं और उसके फीचर्स बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं। That's why Zoom is being preferred over anything। सबसे ज्यादा Zoom लोग यूज करते हैं। तो आप भी Zoom पर एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे, या फिर आप दोनों इसमें से कोई भी एक दूसरा ले सकते हैं। यस सर, मैं कुछ ऐड करूं सर? यस। देखिए, आप सब लोग सोचेंगे कि जूम ही क्यों हम बता रहे हैं, क्या कारण है। लॉकडाउन में हमने लगभग सारे प्लेटफॉर्म यूज कर लिए जो पेड सर्विस के होते हैं, और पहले हमारा जूम का अकाउंट लगभग 500 लोगों का था, 500 लोग हमारे वेबिनार में आ सकते थे। हमने गो टू मीट भी इस्तेमाल किया, हर जितने के पेड हमने जितने आपके सब्सक्रिप्शन लेके देखिए। बट दिक्कत सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत है लैग्स की। लेट सपोज आप वेबिनार कर रहे हैं, अचानक ड्यू टू नेट डिस्कनेक्टिविटी आप अप डाउन करते हैं, तो उस समय बाकी कोई अदर प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता जितना जूम करता है। सेकेंडली,
जूम का जो इंटरफेस है वो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जितना अदर्स का नहीं है, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, सबसे ज्यादा फंक्शन है उसमें। तीसरी जो चीज है, इसमें आप आराम से साथ साथ रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, फ्री वर्जन में भी। पेड का चलो ठीक है, पेड के अलावा फ्री वर्जन में भी आप रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, बहुत चीजें इसमें कर सकते हो। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन है जूम। हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म जो मार्केट में हो या आने वाले हो जो आप यूज कर रहे हो वो थोड़े शायद सस्ते हो इससे, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कस्टमर केयर, this is the best platform to conduct the webinar. Yes, Satya. Hello. Please continue, sir. Thank you, Satya. Now let's start the process how you can conduct a webinar yourself. So there are 11 steps. Please make a note of these 11 steps. So you have to conduct one webinar following these 11 steps. आपको ये 11 स्टेप फॉलो करते हुए, क्वेश्चन है सूरज का, क्वेश्चन इज वेबिनार एन ऐप लाइक जूम। नहीं समझ में आया सर, आप वापस लिखें इसमें। सवाल समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, हम आप पीछे वापस लिख देना इलेबोरेट करके सूरज जी। 11 important steps to conduct a successful webinar. Please note down these 11 steps so that you can conduct a successful webinar, your first webinar. So what are these 11? The first one is your purpose, goal setting and planning. It is simple. You have to find a webinar topic. And let's complete this session, this step right now. So please put in the chat box, what would be your webinar topic? आपका वेबिनार टॉपिक क्या होगा? Please write down. In case you think there are more than one topics and you have to choose out of those, you can put all of them here and we can discuss to select one. जल्दी से आप लिखें आपका कौन सा वेबिनार टॉपिक होने वाला है। Yes, we are waiting for you. पहले पेपर पे लिखें। राजेश मेहता जी ने बाजी मारी, क्लैपिंग फॉर यू, ग्रेट। रेगुलर कैश फ्लो प्लानिंग ड्यूरिंग पोस्ट रिटायरमेंट। रेगुलर कैश फ्लो प्लानिंग पोस्ट रिटायरमेंट, ड्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी सर वो। तो सेकंड, साई कासिक जी, सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसे लिखोगे तो सर वेबिनार में लोग कम आएंगे। आप इसको ऐसे लिखोगे, न्यू इन्वेंशंस टू सेव लाइफ्स थ्रू सेफ्टी। नई इन्वेंशंस क्या हुई है सेफ्टी में, लोग सुनने जरूर आ जाएंगे। इनकम टैक्स प्लानिंग, ठीक है, यहां लिख सकते हो आप प्लानिंग हाउ टू सेव इनकम टैक्स। जैसे ही लिखोगे ना कैसे इनकम टैक्स बचाओगे तो लोग आ जाएंगे। जेनरिक से स्पेसिफिक हो जाओ, थोड़े से, थोड़ा क्राउड से अलग, थोड़ा ट्रेंड से अलग। जनरल टॉपिक पर लोग नहीं इकट्ठे होते। सूरज जी ने लिखा हाउ टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन एफएमसीजी प्रोडक्ट विदाउट सेल टेंशन। हाँ, यहाँ लिख सकते हो हाउ स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसे लिखो, विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड टेंशन। देखो फिर लोग आते हैं। अच्छा सर, विदाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो होगा ही सर। तो आप टेंशन कुछ लिखो, लो इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, लो इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। और नॉट सेलिंग स्किल्स, विदाउट सेलिंग स्किल्स भी कर सकते हो। ऐसे करके कैचिंग लाइन बनाओ। ओके ओके। जयश्वा जी ने लिखा हैप्पीनेस क्वोशेंट। मैम इसको पूरा लाइन लिखो, इस पर लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप एक ल्यूक्रेटिव सी लाइन लिखो जिससे लोगों को लगे अच्छा यहाँ ये जिंदगी में चेंज होने वाला है। हैप्पीनेस क्वोशेंट पे लाइन को थोड़ा चेंज करें। मैम थोड़ा मसाला लगाइए इसको। लर्न टू बिकम हैप्पी एंड हेल्दी, कुछ है। लर्न टू करेक्ट रिलेशनशिप, लर्न टू करेक्ट योर इनकम, ऐसे लिखो। हैप्पीनेस को कनेक्ट करो कहीं से और फिर देखना कैसे लोग आते हैं आपकी तरफ। हाउ टू वर्क ऑन प्रॉफिट, वर्क ऑन पावर पॉइंट। ना जी ना रफात, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा। आप लिखो पावर पॉइंट के करिश्मे क्या है।
हाउ टू Magic मेक of- एनिमेटेड वीडियो बाय पावरपॉइंट क्रिएशन। Yes, magic of PowerPoint in business. सर लिखो. उससे ऊपर भी मैंने लिखा था हाउ टू मेक एड्स इन ग्राफिक इन पावर पॉइंट, Yes. ऊपर How लिखा to, बाद में टॉपिक चेंज how you yourself can create स्टनिंग एड। ads, stunning ads, appealing ads in PowerPoint without any cost, at zero cost. सत्या लिखते हैं zero cost. आप लिखो ऐसे, फिर देखना लोग आएंगे, अच्छा पैसा खर्च नहीं होगा और इसमें पता चल जाएगा पावर पॉइंट में एड कैसे डिजाइन होती है। यस, फिर आएंगे लोग। नवीन कुमार जी, स्टार्ट योर ओन डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यस, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टुडे ओनली। लिखो ऐसे, लोगों को कुछ झटका दो। जब तक आपकी लाइन झटका नहीं देगी तब तक लोग नहीं आएंगे। यू हैव टू जस्ट शेक देयर माइंड। शरद बाबूजी, हेल्थ कम्स फ्रॉम फार्मा नॉट फ्रॉम फार्मेसी। अरे वाह, क्या लाइन है। हेल्थ कम्स फ्रॉम फार्म्स नॉट फ्रॉम फार्मेसी। क्या बात है। मैं देखो लोकपाल सर ने जो राइटअप बनाया वो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देखिए राइटअप की जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक आई कैचिंग एनिमेटेड वीडियोस विदाउट सॉफ्टवेयर। ये पहली जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसके बाद आप देखेंगे हमारे और एड्स, आप देखें, हम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इवन हम जो फ्री एड भी डिजाइन करते हैं, जो फ्री कंटेंट होता है, आप देखिए ask your child to explore career option for himself, learn the right way। शायद मैं इसमें क्या है स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। लर्न द राइट वे ऑफ चूजिंग, लर्न द साइंटिफिक वे टू चूज द राइट फिट कैरियर गाइडेंस। पहली जो लाइन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देख सकते हो लर्न लाइव टू डेवलप बिजनेस इकोसिस्टम। तो आपकी जो पहली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा एक आर्टिकल देखते हो, मास्टर द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, टॉपिक है साउंड थेरेपी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसकी जो पहला जो लाइन है, आप देखिए ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, बिल्ड 6 फिगर ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ये बड़ी मुश्किल से कई ढूंढ ढांड के निकाली मैंने। तो आपकी जो पहली लाइन है जो लोकपाल सर बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। प्लीज सर कंटिन्यू सर। थैंक यू सत्या। तो अभी आया रफात का लर्न हाउ टू मेक स्टनिंग एड्स ऑन पावर पॉइंट विद जीरो कॉस्ट। अभी लाइन ठीक है रफात, बढ़िया आया। यस, ग्रेट। हाउ टू स्टार्ट इन एफएमसीजी प्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट at low investment and low investment for high profit without sales tension। yes, अभी लाइन थोड़ी सी ठीक बनी, हम इसे और थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, हमें एक राइटअप आपका वेबिनार का लिखने में कई बार 1 घंटे भी लगता है, कई बार 2 घंटे भी लगते हैं। आप शायद आपको हैरानी होगी, क्योंकि बात ये नहीं कि आप राइटअप पे क्या लिख रहे हो, आपको राइटअप इस तरीके से लिखना है कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए, वो उस पर्टिकुलर एड को पढ़ने के बाद, इट इज फ्री और पेड, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। तो जब आप बेचने के लिए लिखते हैं तो आप समझिएगा आपको बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो एक राइटअप डिजाइन करने में आप यकीन नहीं करोगे, इट विल टेक टाइम। इवन लाइन चूज करने में भी आप समझ रहे हो, जो आपकी टैग लाइन होगी वो चूज करने में हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। आपको पूरा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरी जो लाइन होगी सबसे पहली वो क्या होगी। तो ये आप खुद कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई फ्रेंड हो आपका जो जिसमें कोई आपका बायस ना हो आपसे, उसे डिस्कस कर सकते। और जब 2 या 3 दिमाग लगते हैं आप यकीन नहीं करोगे लाइन बहुत अच्छी आती है। कहीं मैं और लोकमान सब डिस्कस करते हैं, ये होगा, अचानक बातें बातें कर करके एक यूनिक लाइन हमारे पास सामने आ जाती है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल वेबिनार कर रहे हो। जैसे हमारे वेबिनार अलग अलग टॉपिक की वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के वेबिनार होते हैं, तो उसमें हर एक का टॉपिक डिसाइड करना। जैसे आज आपके साथ संडे है, कल हम दोनों बैठते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वेबिनार के कौन कौन से टॉपिक्स हम डिसाइड करें। तो टॉपिक डिसीजन में हम कई बार आधा घंटे भी लग जाता है, एक घंटे भी लग जाता है, ताकि उसकी की टैगलाइन डिसाइड कर सकें। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी बात है, बट ये आसान नहीं है। इसको जब भी करें तसल्ली से करें और
सलाह भी लें और दूसरों की, तो उसमें क्या होगा, आपके पास बेटर इनपुट आएगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि कैची लाइन है पर दूसरे नहीं सोच रहे हो, तो बनाने के बाद एटलीस्ट 2-3 लोगों को बताएं कि ये कैची लाइन है, क्या इट इज ओके और नॉट, इट इज मतलब स्टनिंग और नॉट, इट इज अमेजिंग और नॉट, इट इज सम यूनिक इज नॉट। तो आप सलाह लें, उसके बाद फाइनल करें। थैंक यू सत्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पहुंचे कि हम उसकी कैची लाइन कैसे बनाएं। कैची लाइन आपने सबने बना ली, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने पेपर पे इसको डिजाइन करना शुरू कर दो। प्लीज स्टार्ट डिजाइनिंग योर फर्स्ट वेबिनार एंड वी गारंटी यू we can make you learn to conduct webinar in case you do these small steps. अगर छोटी छोटी चीजें ये आप करते जाओगे तो ये होता जाएगा। नाउ फाइंड अ वेबिनार टॉपिक कंप्लीट हो गया, कैची लाइन लिखना कंप्लीट हो गई, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है आपको, आउट ऑफ ट्रेंड जाना है। देन थर्ड इज प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट you are offering the ultimate solution to the problem, you are helping your customer base, and focus on a single topic of immediate relevance. आपको करना क्या है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे यहां अभी मुकेश जी ने लिखा 3 secrets of stock selection people experts do not tell anybody, experts do not disclose। लोगों को लगा अच्छा एक्सपर्ट्स जो बात नहीं बताते वो बताने वाले हैं। यस, ऐसे 3 सीक्रेट आने वाले, अब लोग आएंगे आपके पास। आपने थोड़ा करिश्मा दे दिया, थोड़ी क्यूरोसिटी क्रिएट कर दी आपने। तो यहां आपने क्या किया, 3 चीजों पर फोकस करना है। अब आपका डिसाइड हो गया कि पूरे सेशन में आप 3 चीजें बताने वाले हो, और वो 3 चीजें होंगी जो डिफरेंट होंगी। यस, तो आपने और उन 3 चीजों पर ही फोकस रखना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। तो हमें प्रिपरेशन करनी है 3 चीजों की। जैसे उन्होंने टॉपिक लिया, उस पर एक पीपीटी बनानी है, पीपीटी में एनिमेशन और ट्रांजिशंस डालने हैं। और कैसे पीपीटी बनेगी वो जिस दिन आप बना रहे होंगे उस दिन हम आपको बताते चलेंगे। जब भी आप उसकी आधारशिला रखोगे, व्हेन यू आर फाउंडिंग दैट वन पीपीटी, so you just connect with us one on one and we'll help you to make one good kind of appealing ppt। उसमें ज्यादा ऑडियो विजुअल कंटेंट हो, और उसको ऑलवेज प्लीज रन अ टेस्ट फर्स्ट। यू हैव टू रिहर्स whatever you have created, you have to rehearse so that you just check with you that are you comfortable with the material you have put in। जो कुछ आपने लिखा है वो आप आराम से बोल पा रहे हैं, आप स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिट कर पा रहे हैं, कोई बीच में क्वेश्चन पूछ ले तो आप हिलते तो नहीं है। ये रिहर्सल 1-2 बार कर लेंगे तो आपका अपना कंटेंट पक्का हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लोग सामने से पूछेंगे तो आप एंटीसिपेट कर लो, पहले ही गैस कर लो क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स आप क्या देंगे। अदरवाइज आप ब्लैंक हो जाओगे। जब भी कोई सामने से क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं, और वो ब्लैंक होना आपका वहां एक्सपर्ट होने में मुश्किल खड़ी करता है। तो आप क्या करोगे, पहले ही 10 क्वेश्चंस को एंटीसिपेट कर लो और फिर उनके आंसर्स भी आप संभाल के रख लो। आप एक बार रिहर्स कर लो। You just have rehearsed your PPT, you have rehearsed your Q&A, and now you are ready with confidently deliver your webinar। तो ये प्रिपरेशन आपको करनी है। एंड PPT, your first PPT should not be more than 10 to 15 slides। Please never create a longer PPT, just 10 to 15 slides only, not more than this। आपका पहला 1 घंटे का वेबिनार में 10 से 15 से ज्यादा स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। एट एनी कॉस्ट मिनिमाइज देम टू 10 to 15 ओनली। तो ये हो गया हमारा। नाउ मार्केटिंग। जब हमने अपना पीपीटी रेडी कर लिया, अब हमें क्या करना है, मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग मीन्स ऑन सोशल मीडिया चैनल वी हैव टू फॉरवर्ड द एडवर्टीजमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार, so you can register for this webinar here। अभी मैं सत्या से कहूंगा, सत्या प्लीज एक बार डेमोन्स्ट्रेट करें कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स पर हम अपनी एड कैसे बनाकर वेबिनार की डालते हैं। प्लीज जस्ट पुट थैंक यू सर। 2 चीजें मार्केटिंग में कवर करना चाहूंगा। पहला, मार्केटिंग के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एक आपका प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, दूसरा आपका फेसबुक।
बट एक प्लेटफॉर्म और है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। दीज आर द प्लेटफॉर्म ऑन विच पीपल कंडक्ट द इवेंट्स। आप में से कोई है जिसके बारे में जानकारी रखता हो कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं? कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? टेलीग्राम सर। नहीं, टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम नहीं है। इवेंट जो करने के लिए नहीं नहीं, ये भी नहीं है। बहुत इवेंट सा, करने के लिए आते हैं। हाँ, इवेंट करने के लिए आते हैं, मोस्टली इवेंट्स के लिए होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और अभी तो वर्चुअल इवेंट आप कर सकते हो उन पे। ठीक है, इसके लिए तरीका सिंपल क्या है, आपको यहाँ जाना है नेट पे, और जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है, आप लेट सपोज आप में से कोई अनम्यूट करे अपने आप को, कोई अनम्यूट करे, वॉलंटियर करे, कोई भी आप में से कोई। यस सर। हाँ ठीक है। आप कहाँ से हैं रफात जी? हैदराबाद सर। हैदराबाद। इवेंट्स हैदराबाद में कहाँ से हैं? टोली चौकी। इवेंट्स इन हैदराबाद, क्लिक किया मैंने। अब लुक एट दिस, इनसाइडर पे आपके इतने इवेंट्स हैं, देख पा रहे हो? इन Yes. इवेंट्स पे आपको लिस्टिंग करनी है अपने प्रोग्राम की। ये ओनली इवेंट्स के प्लेटफॉर्म है, देख पा रहे हो आप? ओनली इवेंट्स के। ठीक है, Yes, sir. हेल्थ के इवेंट्स हैं, डांस के इवेंट्स हैं, अलग अलग ओपन एयर इवेंट हैं, Oh. रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं। आप देख पा रहे हो, इतने वर्कशॉप्स हैं। इस पे दुनिया आती है, इसको सर्च करती है और देखती है। इसी हिसाब से इनसाइडर के बाद आपके पास आपका मेरा इवेंट है, आप देख पा रहे हो, ऑल इवेंट्स है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के प्लेटफॉर्म है जहां आप इवेंट्स की लिस्टिंग कर सकते हो अपनी, और जहां अक्सर क्राउड आती है। इसके दो सबसे बड़े फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा, एक तो लोग आपके पास आ रहे हैं, और मोस्टली ये प्लेटफॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मोस्टली, जहां आप एंट्री फ्री में कर सकते हो, और पेड प्रोग्राम का सर्टन 10 से 15% चार्ज अपने आप काट लेते हैं, आपका पेमेंट ले लेते हैं। दूसरा क्या है, जब आप अपनी लिस्टिंग कर रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग का वेब प्रेजेंस ऑटोमेटिकली बन रहे हो। अगर मैं लेट सपोज मैं टाइप करूं सत्यावीर सिंह, ठीक है, SAT सत्यावीर सिंह, ठीक है, आप क्लिक करोगे तो आप इमेज पे जाओगे, इमेज पे रैंकिंग मेरी आ रही पूरी ऑलमोस्ट। फर्स्ट पेज पे आप देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 फोटो मेरी आ रही हैं। अबे कैसे आ पा रही हैं? ये आ रही हैं इन इवेंट्स के प्लेटफॉर्म पे। क्लिक करूंगा, लीजिए टाउन स्क्रिप्ट का आ जाएगा इवेंट। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये कहाँ से, ये लिंक्स कहाँ से आ रही है? इन प्लेटफॉर्म से लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लिक करूंगा, एक और क्लिक करूंगा तो लीजिए एक और प्लेटफॉर्म पे लिंक आ जाएगा। देख पा रहे हो आप? तो जब ये लिंक्स जो हैं, ये आपकी वेब प्रेजेंस बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। लोग आपको आपके बैकलिंक्स बन जाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। एक, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। यहाँ पेड इवेंट पे रजिस्टर कर सकते हो, फ्री भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू विच वन यू वांट। ठीक है, ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन करने का। अब रजिस्ट्रेशन, इसमें प्रोसेस लंबा होता है, लगभग फर्स्ट टाइम आपको लगभग 1 आवर टू 90 मिनट लगेगा एक इवेंट को रजिस्टर करने में आपको, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब जब व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड करना है अपना इवेंट, तो पहली बात तो है आपको इमेज डिजाइन करनी पड़ेगी बढ़िया क्वालिटी की। इमेज डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेज आपने डिजाइन की, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड बताता हूँ जो है डिजाइन किया हुआ ऐड है। इस पे आप किन बातों का ध्यान रखना है, 10 मिनट आप ये देखें। अब मैं स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये मेरा स्क्रीन है। और जब भी हम वेबिनार का ऐड डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए ऐड हो ज्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो। अब देखिए मैं एक ऐड ले रहा हूं, लेट सपोज ये ऐड है। ठीक है, मैंने लिखा 10 मिनट। अब लेट सपोज आप वेबिनार कंडक्ट करने चाहते हो और ये पूरा इवेंट वेबिनार मार्केटिंग के ऊपर है, तो जब भी आप वेबिनार कंडक्ट करना चाहो, अक्सर लोग गलती करते हैं, लेंथी राइट अप फॉर फ्री वेबिनार। आप देखना, वेबिनार में जब करोगे, एक फ्री वेबिनार होता है, एक पेड वेबिनार। ठीक है, तो फ्री वेबिनार में कुछ विटामिन एम आपको खर्च नहीं करनी, मीन्स मनी खर्च नहीं करना, तो लोग रजिस्टर जल्दी कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आप समझिएगा, ठीक है ना? लर्न द राइट वे टू चूज। मैंने इसको ऊपर से हटा दिया, लीजिए ये मेरा टॉपिक हो गया, लर्न द राइट साइंटिफिक वे टू चूज कैरियर। ठीक है, छोटा कर दिया मैंने इसको,
बस इतना सा कंटेंट है इसमें, आप देखिए। तो छोटा हो, और सेकेंडली सीधे उसके नीचे आप टाइमिंग लिखें, टाइमिंग और पेमेंट का लिखें, नीचे आप जूम लिंक ऐड कर सकते हैं। इसी पर ध्यान रख लें। अगर आप अपना कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जूम लिंक ग्रुप में मत डाल लें, ग्रुप लिंक बना दें आप। अब देखिए ये मेरा एक और राइटअप है, लेट सपोज जस्ट अ मिनट, इसमें ही आपको क्या करना है, सॉरी, इसमें आपको नीचे जाके एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ऐड करना है। समझना, आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो तो आप चाहेंगे कि लोग दोबारा भी आए, तो वेबिनार, फ्री वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट जूम लिंक न डालें व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के ऐड में। कंपेल द पार्टिकुलर ऑडियंस टू ज्वाइन द पार्टिकुलर ग्रुप। एक बार ज्वाइन कर लेगा ग्रुप को तो ये चांस है कि दोबारा ऐड आप फॉरवर्ड करेंगे तो उसी ग्रुप में ऐड चले जाएंगे। ये मेथड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे बहुत लोगों ने देखा होगा कि फ्री वेबिनार का ऐड आते हैं तो ग्रुप में हम लोग कई बार वेबिनार का ऐड नहीं डालते, ग्रुप लिंक डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग उस ग्रुप में एंट्री करते हैं। तो यहाँ आप ज्वाइन ग्रुप आप कर सकते हो। आपने ज्वाइन ग्रुप किया, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा ज्वाइन ग्रुप, तो यहाँ मुझे कोई भी ग्रुप लिंक ऐड कर देना है। ध्यान रखिए, अगर आप कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि फ्री वेबिनार्स में, ठीक है, राइटअप छोटा हो और उसमें ग्रुप लिंक हो, जूम लिंक ना हो, ताकि पहले लोग ग्रुप लिंक ज्वाइन करें, उसके बाद आप उसमें जूम लिंक डालें। तो आपका कम से कम ग्रुप तो बन गया जिसमें आपकी खुद की कम्युनिटी है। ये पहला स्टेप आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको कोई पेड वेबिनार का ऐड बनाना है, जहां पेड प्रोग्राम आप करने जा रहे हो उसका ऐड देना। लेट्स सपोज ये हमारा एक छोटा सा है, और अगर मैं इसका, ये पूरा राइटअप है, तो ध्यान रखना जो आप पेड वेबिनार का राइटअप बनाने वाले हो, जो पेड, जो वेबिनार के माध्यम से करना चाहते हो, फर्स्ट लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली लाइन जो आपकी कैचिंग लाइन होनी चाहिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मेंशन करना है प्लीज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ध्यान रखना दाम जो है, अगर आपका दाम बहुत ही जबरदस्त है, जो अनमैचेबल है, तो फर्स्ट लाइन के नीचे ही आप दाम मेंशन कर सकते हो। उसके फर्स्ट नाम के नीचे आप उसका प्राइस मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप कंटेंट को मेंशन कीजिए। कंटेंट में खास ध्यान रखिए, अलग अलग कैरेक्टर्स का, अलग अलग कलर्स का यूज कीजिए। अलग अलग कलर्स का यूज करोगे तो इफेक्टिव बनेगा थोड़ा सा वो, और जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा आप बेहतरीन ढंग से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आप देखिए मेरे 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट लिख रखे हैं जो आप सीखोगे। नीचे लिख रखा है कितना प्राइस है, कितने ड्यूरेशन का है, और नीचे रख दिया है कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप लिंक। अब नीचे मैंने ग्रुप लिंक डाल दिया। अब देखिए इसमें ग्रुप लिंक है, सॉरी ये डबल कॉपी हो गया, जस्ट अ मिनट, लगता है, सॉरी ये 2 बार कॉपी हो गया, मुझे थोड़ा टाइम दें। मुझे ये है वो ऐड, जस्ट अ मिनट, सॉरी। आप ये जो ऐड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कौन सा वाला ऐड है, सॉरी प्लीज वेट करें थोड़ा सा, शायद मैं, सत्य जी ये सब आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में टाइप कर रहे हो ना? सर मैं टाइप नहीं कर रहा, व्हाट्सएप से एक ऐड निकाल रहा हूँ जो मैंने नहीं डिजाइन मतलब, किया है। हाँ व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं सारा का सारा। हाँ व्हाट्सएप में टाइप किया हुआ है पूरा, ओके। हाँ हाँ ठीक है। तरीका ये, या तो आप इसको नोटपैड में टाइप करके कॉपी कर लो नोट्स में, या फोन पे टाइप कर लो। बेहतर होगा आप इसको नोटपैड या वर्ड में टाइप करें, फिर इसको आप कॉपी कर लें अपने फोन में, उसके बाद इसमें सजावट का काम करें पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ क्योंकि वो कलर्स आपने जो डाला था अभी, जैसे एनिमेटेड और आई हाँ करके जो हाँ ब्लू में है ना, ब्लू में हाँ, वो ब्लू में कलर्स कर सकते हैं क्यों? कलर, आप एक खास ऐप आता है ब्लू वर्ड, उसमें आप करोगे तो वो कलर का आप यहाँ कॉपी कर सकते हो। ब्लू वर्ड नाम का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ब्लू ब्लू बर्ड, बर्ड, ओके। ठीक है। तो आपके पास ये राइटअप है, आप देखिए लास्ट में मैंने लास्ट में 2 ऑप्शन देके रखे हैं, ज्वाइन अवर कम्युनिटी, इफ यू आर इंटरेस्टेड क्लिक हेयर। अब फायदा क्या होगा, जैसे आप क्लिक करोगे इंटरेस्टेड पे, तो एक आपके पास रेडीमेड आपके पास एक राइटअप आएगा जिसमें आप आंसर कर सकते हो। लीजिए क्लिक किया मैंने, अब देखो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे डायरेक्टली कॉल करेंगे। मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक लाया, हाय हेलो आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, लेट मी नो द डिटेल्स। मतलब वो बंदा ग्रुप ज्वाइन तो नहीं कर रहा, बट वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इसमें
इसमें ध्यान रखना है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, मैंने क्लिक करूंगा तो इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आप समझिएगा। तो देखिए ये इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो आप देख, ये होता है आप ना शॉर्ट लिंक बना के डालें, ठीक है। तो शॉर्ट लिंक बनाना बहुत आसान है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए आपका व्हाट्सएप बिजनेस कोच। कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद बिजनेस टूल पे जाके शॉर्ट लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ जाइए और शॉर्ट लिंक बना दीजिए। आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स मार्गदर्शन गुरु, फॉरवर्ड विद द डिटेल्स, और इसको कॉपी करके आप उस राइटअप में इंक्लूड कर दें। ये जो राइटअप यहाँ है, मैं यहाँ करके इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए सिलेक्ट ऑल, कॉपी। अब देखना जो बंदा इंटरेस्टेड होगा, समझना, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा वो डायरेक्टली इसको पे क्लिक करेगा और मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई एम इंटरेस्टेड। बैक साइड एक स्टेप बैक जाएंगे, कैसे वो कॉपी करते हैं वो डिस्कस मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको पास राइटअप लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड, दिस कॉल्ड शॉर्ट लिंक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, वही व्हाट्सएप बिजनेस में आएगा, व्हाट्सएप नॉर्मल में नहीं आएगा। बिजनेस टूल्स में जाना है, नीचे आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट लिंक, यहाँ जाना है और आपको डिजाइन करना है क्या आप लिखवाना चाहते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट वगैरह, जिस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको राइटअप में इसको इंक्लूड करना है। अब ध्यान रखना, इस पूरे राइटअप में मैंने प्राइस मेंशन किया है। सेकेंडली ज्वाइन द कम्युनिटी, ताकि वो बंदा कम्युनिटी भी मेरी ज्वाइन कर ले। तो उसका फायदा क्या होगा कि फर्स्ट, इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड और इफ आई वांट टू परचेज लेटर, तो मैं कुछ ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। मुझे पता है इसमें मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। मैं छोटा सवाल पूछता हूँ आपसे, जैसे आप राइटअप बनाया आपने और आप इस ग्रुप में आ गए, तो फायदा क्या है, ग्रुप में हो रहा है इंटरेक्शन, लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग आपके पेमेंट लिंक भेज रहे हैं। तो जब पेमेंट लिंक आते हैं तो लोगों को विश्वास आता है, यस लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो लोग वो विश्वास बन जाता है कि ठीक है हम भी पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की बहुत चीजें रहती हैं, तो इंटरेक्शन बिल्डअप होता है, ऑडियंस आपकी बिल्ड होती है, आप वहाँ टेस्टिमोनियल भेज सकते हो। तो ग्रुप लिंक आई वुड से इट विल हेल्प यू अलॉट टू ग्रो योर ऑडियंस, और ऑडियंस को होल्ड करने में हेल्प होगा। तो पहली बात, कैची लाइन के नीचे एक शॉर्ट राइटअप हो, ज्यादा लंबा राइटअप ना हो। अगर आप देखो तो की राइटअप है, केवल 7 पॉइंट्स का है, 7 पॉइंट का राइटअप हो, प्राइस के बारे में मेंशन हो, टाइमिंग हो, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हो तो बहुत बढ़िया। और कोई बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, उसके नीचे आपने डाल दिया शॉर्ट लिंक, ठीक है। ये अपने शॉर्ट लिंक डाल दिया, इसको कहते हैं सबसे नीचे जो लिंक है दैट्स कॉल्ड शॉर्ट लिंक। आप चाहते हो कि ये जो एड थोड़ा अच्छा लगे, तो आप ध्यान रखना, मेक आई कैचिंग एनिमेटेड वीडियोस में देखिए मैंने यहाँ स्टार लगा के रखा है। तो अगर आप उसी जो आपने क्या किया, राइटअप में आपने क्या किया, देखिए इस राइटअप में अगर आगे पीछे आप स्टार लगा देंगे तो वो पार्टिकुलर एरिया हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इसमें यहाँ स्टार लगा के रखा, जो आपको दिख रहा नहीं होगा, यहाँ स्टार लगा रखा है और यहाँ लास्ट में जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो आगे पीछे स्टार लगा रहे हो, वो हाईलाइट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्लिक किया, स्टार किया और ये कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। तो ये पार्टिकुलर कंटेंट ये वाला मैंने हाईलाइट कर दिया, और तो हाईलाइटिंग इजीली हो जाती है। आप चाहते हो कि ये जो ऐड है इसमें ऊपर क्या दिख रहा है, ग्रुप लिंक दिख रहा है, मैं चाहता हूँ फोटो ऐड भी आ जाए ऊपर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको जाना है, कोई गैलरी में कोई फोटो आपने डिजाइन कर रखी हो, कोई लेट सपोज मैंने भाई ऑलरेडी तैयार नहीं, उसके लिए मैं भाविशा जी का एक फोटो ले लिया। सपोज भाविशा जी ने कुछ कंटेंट बना के रखा था, ये ठीक है, एक वीडियो, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं, आप में तो ये वीडियो ऐड है, मैंने कोई भी फोटो लिया, जस्ट मिनट, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं रैंडमली कोई भी चूज कर रहा हूँ अपने। देखिए ये है, ये फोटो हमारा, और मैंने क्लिक किया और यहाँ कैप्शन में जाके इसको पेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड किया। अब देखिए राइटअप जो आएगा, अभी राइटअप में फोटो ऐड माउंट होगा, ये फोटो ऐड माउंट है। बट इसमें दिक्कत है कि उस बंदे को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये फोटो ऐड हो गया, बट मैं चाहता हूँ वीडियो ऐड जाए, तो मैं क्लिक करूंगा, आप सेम गैलरी में जाऊंगा, कोई भी एक वीडियो उठाऊंगा। लेट सपोज मैंने कोई भी एक वीडियो उठा रहा हूँ, लेट सपोज
मैं भविष्य जी ने वीडियो बनाया था वही उठा लिया मैंने, और इसको मैं क्लिक किया, पेस्ट किया, फॉरवर्ड कर दिया। अब दीजिए अभी क्या आ गया, इसमें टॉप पे वीडियो माउंट ऐड आ गया, जहाँ कस्टमर वीडियो देख पा रहे हैं। देखिए अगर आपके ऐड में, राइटअप में वीडियो ऐड माउंट है तो सेल बढ़ने के 20% चांस ज्यादा हो रहे हैं। पूछे क्यों? वो इसलिए कस्टमर ऑलरेडी देख पा रहा है, क्या आप कराओगे। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ आपसे, ये राइटअप यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा का पूरा, अगर मैं इसी राइटअप में अपना एनिमेटेड वीडियो ऐसे डमी बिल्ड कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं 2 मिनट का, तो क्या सेल ज्यादा होगी कि नहीं होगी? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस और नो। ठीक है, इसी हिसाब से लेट सपोज भाविशा जी एक प्रोग्राम करनी है गर्भ संस्कार के, वो बताएं कि भाई गर्भ में बच्चों को आप आइंस्टीन जैसा दिमाग बना सकते हो, राइटअप है उसके टॉप उन्होंने वीडियो माउंट कर दिया 5 मिनट का जबरदस्त वीडियो, तो उसको ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। तो अगर वीडियो एड माउंट होगा ना तो सेल बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, बट ऑडियंस बिल्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। कैसे? क्योंकि अब वो पर्सन हो सकता है आपका ग्रुप ज्वाइन ना करे। ठीक है, तो दोनों मेथड अप्लाई कीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन करने भी ऑप्शन देखिए, इसमें आप देखिए जब पहला बंदा देखेगा तो वो वीडियो देखेगा टॉप पे, ठीक है, और उसके बाद वो जाएगा आपका नीचे राइटअप में। तो वीडियो एड माउंट होता है किसी कंटेंट में, ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, और आप उसे कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि गेट फ्री ई बुक, ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, ज्वाइन दिस ग्रुप। और मुफ्त का चंदन सबको पसंद होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ फ्री बीज, इवन इट इज पेड वेबिनार, बट if I am not paying but I can get something, definitely I will consider to join the group। एक बार ग्रुप में आ गया तो वो आप कुछ भी उसको अभी बेच सकते हो, बाद में बेच सकते हो, और नर्चरिंग कर सकते हो। मींस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट उसको दे सकता है कि उसका विश्वास बढ़े, यस आप मुझे कुछ वैल्यू दे सकते हो उसके मनी की। तो ये चीज ध्यान रखना है। ग्रुप लिंक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो सके। शॉर्ट लिंक काम आता है जब कस्टमर को आप ना आप कॉन्टैक्ट कर सके, यस इफ यू इंटरेस्टेड क्लिक हियर। अब आप समझिएगा ये मेरा ग्रुप है और Sir, इस ग्रुप, how to copy the link of group, sir? पार्डन? How to copy the link of group, WhatsApp अच्छा, group? व्हाट्सएप ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ग्रुप के क्रिएटर होने चाहिए या एडमिन होने चाहिए। आपने कुछ नहीं करना, टॉप पे जाना है, ग्रुप में इनवाइट विया लिंक को कॉपी करना है, बस ग्रुप लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके इसको पेस्ट कर दीजिए। ग्रुप के या तो एडमिन हो या ग्रुप आपने क्रिएट किया हो। अब लेट सपोज ये ग्रुप Okay, sir. हमारा, ठीक है, अब मैंने जो शॉर्ट लिंक ग्रुप में जो मेरे पास था, मैंने क्या किया, उस शॉर्ट लिंक को, सॉरी जस्ट अ मिनट प्लीज, ये है शॉर्ट लिंक, ठीक है, जो हमारा ग्रुप में जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस ग्रुप में गया और मैं इस ग्रुप में जाके मैंने यहाँ लिख दिया इफ यू आर इंटरेस्टेड click here to get, click here, click here if you are interested। ठीक है, मैंने करके इसके नीचे यहाँ लीजिए, आप देख पा रहे हो मैंने डाल दिया। अब जैसे बंदा क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली हमें पास आ जाएगा कि उसका मतलब इंटरेस्ट हो चुका है इसमें। तो आप ये भी डाल सकते हो बाद में। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हो या फेसबुक पे कर रहे हो, तो सेम आपको ऐड बनाना है, ऐड के नीचे राइटअप रखना है ताकि वो बंदा ग्रुप में ज्वाइन कर सके। यहाँ तो सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। किन बातों का आपने ध्यान रखना है जब व्हाट्सएप पे आप ऐड अपना फॉरवर्ड कर रहे हो? प्लीज कोई डाउट हो प्लीज आप पूछ सकते हैं अभी। सर ये खाली लास्ट में जो आपने व्हाट्सएप आइकॉन जो बनाया ये मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। ये जो आइकन से, ठीक है, Yes, ये आइकन्स बनाए नहीं है, इनबिल्ड होते हैं सर। ठीक है, ओके लेट सपोज मैंने एक राइटअप शुरू से डिजाइन करना है और ये राइटअप आप देखिए इसमें कोई आइकन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, मुझे आइकन लगाने हैं, इसको सजाना कैसे, तो बहुत ईजी है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस हेडलाइन को सजाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके इमोजीज आ गए।
ठीक है, इसमें से एक इमोजी चुनूंगा जो प्यारा सा हो, क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ हाईलाइट हो पर्टिकुलर टेक्स्ट, इसको स्टार आगे लगा दिया पीछे लगा दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि टाइमिंग लोगों को दिखे, तो मैं टाइम पे खास एरो लगाऊं ताकि लोगों को एग्जैक्ट पता लगेगा किस दिन है, और है तो फ्री। फिर हु इज कंडक्टिंग, मैं इसको हाईलाइट करूंगा ताकि लोगों को निगाह जाए। अब क्या क्या बच्चे चूज कर, क्या क्या सीखेंगे इसमें, सॉरी, यस यस, तो मैंने क्या किया, इसमें अलग अलग इमोजीज लगा दिए जो मुझे, ठीक है रखो, ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक खास आइकन लगा दिया जो मुझे अच्छा लगे। ध्यान रखना आइकन बहुत मल्टीपल टाइप के एक सीरीज में लगाना ताकि उसमें एक सिमिलैरिटी दिखे। तो मैंने क्या किया, एक आइकन चुन लिया, 1 2, कोई इसमें जो ऐड हो ऑड हो उसमें आप स्टार लगा सकते हैं, बाकी सब में आप एक चीज लगा सकते हैं। लीजिए इतना कर लिया, अरे ये रंगीन बन गया। और कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो मैं ऐड करके थोड़ा सा इसको और इफेक्टिव बना दूंगा। यहाँ जाके लीजिए बन गया गुरुजी। यस सर। हाँ, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें भी क्या ऐड करना है, मुझे ग्रुप लिंक ऐड करना है, शॉर्ट लिंक ऐड करना है। तो ये आराम से बना सकते हो। उसको आपको फॉरवर्ड करना है, इसको कॉपी किया आपने। अगर फोटो ऐड फॉरवर्ड करना चाहते हो, सिलेक्ट ऑल कर लिया, कॉपी किया, और आप इसमें फोटो ऐड फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। जस्ट मिनट, यहाँ आप गए, यहाँ जाने के बाद क्लिक किया, कोई भी आपने फोटो उठाया लेट सपोज, ठीक है, ये फोटो मैंने उठाया अपना, क्लिक किया और फॉरवर्ड कर दिया। लीजिए ये चला गया फोटो ऐड, ठीक है सर, ये चला गया फोटो ऐड। इसी वीडियो ऐड माउंट करना है, वीडियो ऐड माउंट हो जाएगा। इवन यूट्यूब लिंक माउंट करना है, यूट्यूब लिंक माउंट हो जाएगा। बट ध्यान रखना जो लिंक टॉप पे होगा उसी का बिहेवियर दिखेगा। आप देखिए, तो आप ध्यान रखना फ्री वीडियो, फ्री आप अगर कोई वेबिनार कर रहे हो, प्लीज टेक्स्ट को मिनिमम रखें ताकि लोग उसमें ज्वाइन कर सकें। अगर आप पेड कर रहे हो तो टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा रखें ताकि देख पाए कि मैं जब पैसा खर्च करूंगा तो कितना मुझको सीखने को मिलेगा। तो ऐसे आप अपना कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? I had a question, please. यस जी मैम। Yeah. So when you put the link of the YouTube, which shows the video, and people click on it on WhatsApp, you wouldn't be getting the view on your YouTube channel, right? Yes, you will be getting views on YouTube channel. Even if they click it on the WhatsApp and they see it there only, because there's two ways. You can either open it via YouTube or you can see the video as it's by any browser. If they are watching a video, whether it is Chrome, whether it is on the WhatsApp or in Telegram, views will be counted. But watch time is most important. Let's suppose people are watching your videos, but in between they are skipping your video, not watching the entire video. So within the WhatsApp, I recommend forward the YouTube link not more than 3 minutes. So watch time is most important. And secondly, people mostly do not watch the YouTube link. Why? Because it takes some data also. So you should have recorded video, means you should forward a video in build. That person just download and watch the video. I would, जैसे आपके एक सवाल है सबसे, आप में इसके पास एक WhatsApp पे एक वीडियो आए डाउनलोडेबल, वो आप देखना पसंद करोगे कि YouTube लिंक क्लिक करके जाना पसंद करोगे? प्लीज सबसे, अगर वीडियो है जस्ट टाइप वी, अगर YouTube है जस्ट टाइप यू इन द कमेंट सेक्शन। आप समझिएगा, इस साइकोलॉजी को समझिए। अक्सर लोग YouTube लिंक डालते हैं, मैं उसको एडवाइस नहीं करता, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि YouTube लिंक आया होगा व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डाउनलोडेबल फॉर्मेट वो ऐसा होता है, सीधे देख पा सकता है। यस, आप क्या कर सकते हो, टेस्टिमोनियल के लिए, अदर चीजों के लिए वीडियो के नीचे लिंक आप रख सकते हो YouTube का, ताकि वो YouTube पे जाके पूरी लिस्ट देख सके। तो उसके दोनों पर्पस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो डाउनलोडेबल इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां ऊपर टॉप पे डाउनलोड हो, क्लिक करते ही वो देख सके और उसकी फोन मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, एक बार फोन मेमोरी में डाउनलोड हो गया तो दूसरी बार भी तीसरी बार भी देख सकता है, पर एक बार YouTube लिंक में हो सकता है जाएगा, चाहे दोबारा ना देखे वो। इस चीज का ध्यान रखना मैम। मैम डाउट क्लियर हो गया मैम इसका? दिशो मैम? Yes, but personally, I don't download people's videos. I would rather use the YouTube link. See, nowadays, internet is not very expensive, it's cheaper.
So downloading something on your phone gets stuck in your phone, and you're in many groups. It's using all space on your Ma'am, it is up to you, but this is my general recommendation. I personally, when I मैम आवाज चली गई आपकी. No, what I was saying was I generally don't really download videos. I'll rather look something on YouTube. मैम आपकी बात ठीक है, बट यहाँ हमें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. समझिएगा, कई बार हम अपनी जगह सही है, बट आप जब मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कस्टमर के एंगल से सोचना है. ये बहुत जरूरी है. मैं भी पहले करता था, यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड कर देता था. उसके बाद यूट्यूब लिंक को फॉरवर्ड कम किया मैंने, डाउनलोडेबल वीडियो फॉरवर्ड किया खासा ग्रुप में, तो मुझे रिजल्ट अच्छे आए. तो इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू यूज, बट दैट दिस विल हेल्प. ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि राइटअप जब बनाना है किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन चीजों पर पिच करना है. और मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ठीक है. आप देखिए, मैंने जब बताया था आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. पूरी एंटायर लिस्ट में आपको दे दूंगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप पूरा कंटेंट अपना लिख सकते हैं. पूरी लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ इवेंट्स के प्लेटफॉर्म की, जहां जाके आप पूरा इवेंट्स की लिस्टिंग कर सकते हो. ये इवेंट्स के सारे प्लेटफॉर्म की डिटेल्स आपके जूम चैट में मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ. आपको ध्यान रखना, मेजोरिटी आर फ्री, वहां जाके लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी. पहला स्टेप आप वहां से कर सकते हैं. और क्योंकि हर एक के पास इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये इवेंट्स के प्लेटफॉर्म. और ये सब नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप ना इवेंट्स को लिस्ट करते हैं. तो यहाँ जाके आप लिस्टिंग कर सकते हैं. कि लिस्टिंग अपने आप में बड़ा प्रोसेस है. इसमें लगभग 1 घंटा या 90 मिनट आपको लगेगा फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने में. बैंक अकाउंट डिटेल डालना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको डालनी पड़ेगी. वो मैं डिटेल नहीं जा रहा, बस मैं आपको लिस्ट हिंट करके दे रहा हूँ ताकि आप आगे बढ़ सकें. इवन फेसबुक में भी, फेसबुक के ग्रुप्स में डालना. अब देखते हैं, एक बार आपने ऐड बना लिया, अब ऐड बनाने के बाद आप बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. कौन से ग्रुप? देखिए, बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है. यहाँ जाइए फेसबुक में, सॉरी जस्ट अ मिनट, आपने फेसबुक लॉगिन कीजिए. अब फेसबुक पे जाके आप ग्रुप सर्च कीजिए. बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे पार्टिकुलर कैटेगरी के. यहाँ मैंने डाला हीलिंग ग्रुप्स, हीलिंग डाला मैंने, हीलिंग ग्रुप्स. बहुत सारे ओपन ग्रुप्स होते हैं जहाँ आप क्वालिटी कंटेंट डाल सकते हो. इट विल टेक सम टाइम. इन ग्रुप्स को ज्वाइन करो. लगभग 25, 30, 40 ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लो. जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, ग्रुप मैंने किया, बहुत सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं. देखिए 28,000 पीपल, 21,000, 22,000, कई बार 50-50 लोग, 1000 होते हैं. आप क्लिक करना है, पब्लिक ग्रुप में जाइए और उसमें जाके कुछ ना कुछ कंटेंट अपना डाल दीजिए. मेक श्योर ऐसे ग्रुपों में अगर आप क्वालिटी ऐड करते हो, कंटेंट ऐड करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, वो बेटर रहेगा. समझिएगा प्लीज. इफ यू ऐड सम वैल्यू टू द पीपल, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज योर ऑडियंस. तो वहां आपके पास इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए. यस, यहाँ भी अपने इवेंट की लिस्टिंग कर सकते हो, इवेंट का लिंक डाल सकते हो ताकि लोग उसकी देख सकें और आपको मतलब कहीं ना कहीं से लीड्स मिल सके. तो ध्यान रखना, एटलीस्ट आई रिकमेंड 7 इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने चाहिए आपके पास अपने प्रोडक्ट के, सर्विस के, विदाउट सेलिंग. बेचना नहीं है, ठीक है भाई. जो पुराने टाइम पे जो पता था ना, बंदर को डांस कराने वाला, वो भी पहले डुगडुगी बजाता था, डुग, ठीक है ना. वो डुगडुगी बजाने का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा. समझिएगा, अट्रैक्ट करेगा. एटलीस्ट यू शुड हैव 7 इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉलोड बाय 7 प्रमोशनल वीडियोस. समझिए, मैं बेच क्या रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो, बेच क्या रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है. मैं एनिमेशन का कोर्स बेच रहा हूँ 99 रुपए का, तो मैं कहूँ भाई मेरे 2 मिनट के वीडियो है, मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, क्या इसके फायदे होंगे. तो दैट इज प्रमोशनल वीडियो. 7 इंफॉर्मेशन वीडियो, 7 प्रमोशनल वीडियोस ऑफ द पार्टिकुलर इवेंट. तो उससे क्या होगा, लीड्स आने में बहुत आसानी होती है. लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि वो 100-150 वर्ड्स का राइटअप पढ़ना पसंद नहीं करते, वो 2 मिनट का वीडियो वॉच करना पसंद करेंगे. समझ रहे हो आप? समझिएगा. तो आपको बिल्कुल पकी पकाई खीर उनके सामने आगे रखनी. भाई ये हमारे खीर है, खुशबू है, खाना चाहो तो मेरे को इतना पैसे दे दीजिए. तो आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे
तो वेबिनार में सेल होगी, लोग जुड़ेंगे उसमें। तो मार्केटिंग में ये है फ्री मार्केटिंग का टूल। अब पेड में जब जाते हैं, आप फेसबुक एड्स पे जा सकते हैं, गूगल एड्स पे जा सकते हैं, कीवर्ड्स को टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। बट समझिएगा, जो भी ऐड आप करें, जब भी ऐड आप चलाएं, पहली बात, कभी भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। इनिशियली 500 रुपए पर डे से आप स्टार्ट करें धीरे धीरे करके, ताकि आप देख पाए कि ऐड आपका बिहेव कैसे कर रहा है। मंथली आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप देख पाए कि ऐड बिहेव कैसे कर रहा है। उसमें भी अलग अलग मेथड से टारगेट हो सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पेड में आरओआई क्या होती है। आरओआई डिपेंड करती है किस कॉस्ट में बेच रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या वो फ्रीमियम है या वो प्रीमियम है, अलग अलग कैटेगरी से होती है। तो अगर मार्केटिंग करनी तो फेसबुक सबसे बेस्ट है, सस्ता है गूगल से, तो फेसबुक सबको पहले आप यूज करें, ठीक है। फ्री वेबिनार करोगे तो फ्री वेबिनार में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको फॉलो अप करने के लिए प्रॉपर कॉलिंग टीम हो। अगर कॉलिंग टीम है तो आपके पास आरओआई ज्यादा आएगा, अगर कॉलिंग टीम नहीं है तो आरओआई कम आता है। क्योंकि कोविड से क्या है, फ्री वेबिनार की बाढ़ आ गई है। पहले तो होते नहीं थे, अब होते तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपका डायरेक्ट कॉलिंग टीम है तो फायदा होगा आपका। इसके हिसाब से अगर कोई डायरेक्टली पेड रखते हैं, रिकमेंडेशन है पेड बड़ा अमाउंट में रखें, क्योंकि सीधे कोई 5,000 10,000 आपको देने वाला नहीं है। कम अमाउंट रखें ताकि कस्टमर को टेस्ट मिले। आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भाई साहब एक लड्डू खा के देखो, एक लड्डू, वो एक लड्डू इसलिए आपको दे रहा है ताकि आपको टेस्ट मिले, ठीक है। यस, ओके मैम, हम आपके ग्रुप में लिंक भेज देंगे ताकि आपको टेस्ट मिले कि भाई वो है कैसा टेस्ट, ठीक है भाई। आप जब हमें जब शादी करने जाते हैं अरेंज मैरिज में, तो हमें कन्या दिखाई जाती है, लड़के वर वधू, ठीक है, तो दैट इज पहला प्रोमो पार्ट, ठीक है, वो प्रोमो पार्ट होता है। तो मेक श्योर, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका प्रोमो अच्छा हो। और कम दाम में क्या है, लोग देख लेते हैं, यस ठीक है, 1 2 3, ठीक है, आप 1 घंटे का प्रोग्राम बना सकते हो ताकि लोग देखें कि यस आप कैसे करा रहे हो। और आपको एक चीज बताऊं मैं, आपको हो सकता है आपको और लगे, आज के टाइम में आपके पैसों की वैल्यू देने वाले कम है। आप जाओगे तो अच्छा आपको दूध वाला नहीं मिलेगा, अच्छा शायद टीचर ना मिले उस दाम पे, डॉक्टर तो आपको मिल जाएगा, अच्छी नीयत का ना मिले जो आपको कम से कम दाम में ठीक कर पाए। तो बहुत जरूरी है कि अगर एक बार कस्टमर आप जो जुड़ रहा है, अगर आपको 100 रुपए दे रहा है तो आप उसको 200 की वैल्यू दो, वो आपको मुरीद बन जाए। वो होता है कम वेबिनार में, कम आपने पैसे लिए, उसके बाद कोई बड़ा प्रोडक्ट अपना पिच करो, उस केस में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, मैक्सिमम आपके पास फायदा होगा। तो इस मेथड से आप कर सकते हो। और लोकपाल सर के पास तो इससे ज्यादा अनुभव है पेड ऐड चलाने का। मैं चाहूंगा इस पे वो प्रकाश डालें, किस हिसाब से हम आरओआई कैलकुलेट कराएं प्लीज लोकपाल सर। सर ये लिंक कॉपी नहीं हो रहा है, इसको ग्रुप में डालेंगे बाद में। अरे गुरुजी अभी डालते हैं गुरुजी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सत्या। तो यहाँ तक हमने मार्केटिंग देखी, आप कैसे अपनी वेबिनार को मार्केट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, ये कुछ और टॉपिक बचा है। कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर अभी सत्या सर ने जो फेसबुक के ग्रुप वाला बताया ना, तो वहां पे हम मैक्सिमम कितने ग्रुप में एक साथ हमारा जो लिंक है, समझो कि मैं मेरा वेबिनार आ रहा है, उसका प्रमोशनल अगर मुझे पोस्ट डालना है तो हम मैक्सिमम कितने ग्रुप में डाल सकते हैं? मैम अभी तक कोई लिमिट हमें वहाँ देखने को नहीं मिली है। मैंने खुद जितने ग्रुप मेरे पास है, मैं सारे ग्रुप्स में उसे पोस्ट करता हूँ फेसबुक में। तो बस वहाँ एक कंडीशन यही है कि कुछ ग्रुप्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स में एडमिन परमिशन देनी पड़ती है। बट जितने ग्रुप्स मेरे पास है मैं वहाँ पोस्ट कर पाता हूँ। अभी तक मुझे वहाँ कोई ऐसी लिमिट का लिमिटेशन नहीं मिला कि इतने सारे ग्रुप्स में ही आप डाल सकते हो। ओके, तो जब आप मार्केटिंग का एक एडवाइस है, जब आप अगर मार्केटिंग फेसबुक पे करना चाहते हो तो बेटर होगा 3-4 अलग अलग आईडी बना लीजिए और हर एक आईडी पे 100 ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से ऐड को मैनेज कर पाएंगे। अगर एक ही आईडी में लेट सपोर्ट 400-500 ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिए तो लीड्स मिलने में दिक्कत आती है। एटलीस्ट हाँ, तो उसमें क्या हो आपको पता है, अच्छा ये मेरे इस ग्रुप है, इस टाइप के आईडी से मेरे ये ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि
मैं एक बंदे से मिला था जो होम ट्यूशन की लीड्स निकालते थे, तो मैंने पूछा कि सर कितने फेसबुक अकाउंट है? कैसा, हमारे पास 25 फेसबुक अकाउंट्स हैं, 25, ठीक है, ओहो जिन पे अलग अलग हम हर महीने हम 100 लीड्स होम ट्यूशन की निकाल लेते हैं। आप समझ जाइए, 100 लीड्स मतलब एक फेसबुक की लीड का कॉस्ट लगभग 50 से 60 रुपए होता है, तो मतलब 6,000 रुपए का लीड्स वो ऑर्गेनिकली निकालने हैं फेसबुक, सिर्फ फेसबुक से। तो ओके आप, हाँ, क्योंकि जब देखिए, जब आप फ्री में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको या तो ऑडियंस बनानी पड़ेगी या ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, और ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मेहनत के पार्ट में काउंट हो जाएगा फिर आपका ये। सर अभी जो पॉलिसी चेंज हुई है सब ये, तो उसमें मल्टीपल हमारे अकाउंट्स होते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है क्या? मैम मल्टीपल अकाउंट होंगे तो कोई इशू नहीं होगा। रीजन क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मल्टीपल अकाउंट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ये कभी इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल अकाउंट आप रख सकते हो मार्केटिंग के लिए मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करके रखनी पड़ेगी। मेल हाँ। आईडी चेंज करें ना हमेशा। मेल आईडी हमेशा एक ही मेल आईडी से आप जब भी एक से ज्यादा बनाओगे तो वो फेसबुक पकड़ लेता है। एक से ज्यादा Okay. मेल आईडीज आप चेंज करके रखें, फिर आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके नहीं, बट आपको जितनी मैनेज कर सकते हो उतने ही बनाना। एक्चुअली हम लोग वन मैन आर्मी, टू मैन आर्मी है, तो हम लोग ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट करके अपने को उलझन में भी न डालें। अगर एक अकाउंट पे हमारे 100 ग्रुप हो गए हैं तो दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, 100-150 ग्रुप एक अकाउंट पे आप मैनेज कर सकते हो। इतने तक तो आपको दूसरा बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। जी सर। जी, तो अभी तक हमने मार्केटिंग करना सीख लिया। देन डू रजिस्ट्रेशंस वेल इन एडवांस। जब भी हम कोई वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम लोगों को ये भरोसे ना रहे कि हमने लोगों को लिंक भेज दिया। हम जनरली 2 तरीके से वेबिनार कंडक्ट करते हैं। एक तो हम पब्लिकली लिंक दे देते हैं, पहले ही जूम लिंक लोगों को दे दिया, आप हमारी वेबिनार में आ जाओ। ये वाली जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बिकॉज वहां हर आदमी लिंक को लेकर आ जाता है और वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। का मतलब है आपने अपने इनकम्बेंट को, आपने अपने आने वाले मेंबर को पहले कहीं जज नहीं किया, टेस्ट नहीं किया और सीधे उसको आने दिया। वो आपकी क्लास में आके न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, वो आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, आपका एनिमी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करो उनके रजिस्ट्रेशंस पहले हो जाएं। रजिस्ट्रेशंस का मतलब है कि वो पहले आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे सत्या ने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप आपने दिया या शॉर्ट लिंक दिया, किसी आदमी ने व्हाट्सएप ग्रुप या शॉर्ट लिंक में ज्वाइन कर लिया तो आपके पास उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको पता है कि उसका फोन नंबर आप जानते हो और उसे पता है कि आपको उसका फोन नंबर पता है, तो वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो कोशिश करो उन लोगों के फोन नंबर्स या ईमेल आईडीज आपके पास आ जाएं, which is the end purpose of you to conduct a webinar, because जब तक आपके पास लीड्स नहीं होंगे कन्वर्जन कैसे करोगे। तो always call them, bring them in your community, in your tribe, and just through registrations वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर आपको भी पता चलता रहे कि कितने लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं और आपको वेबिनार कंडक्ट करना है या उसको पोस्टपोन करना है। Always out of 100 registrations 50 people come for webinars। अगर 100 लोगों ने रजिस्टर किया है तो 50 लोग आते हैं on an average। अगर आपको 20 ने रजिस्टर किया है तो 10 लोग आएंगे। So you have to prepare yourself in this way। So registration should be always double to the capacity, expected capacity of your room। अगर आपके पास 100 का Zoom अकाउंट है then you take around 200 registrations and approximate 100 people come over there। आपको registrations एडवांस में करेंगे तो आपके पास लीड कॉन्टेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे, which is your end purpose and you should do this way। And whenever people have registered, just inform them simultaneously, instantly that you have registered for this particular webinar and the webinar is designed or lined up for this particular time and date, and you will be sent one Zoom link for this। आपको Zoom link भेज दिया जाएगा या आप Zoom link साथ साथ भेज दो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला एक इंस्टेंट भेज दें और दूसरा जब वेबिनार शुरू होना हो ऑन दैट पर्टिकुलर डे
before starting your webinar, you should send once more the information about your webinar so that people can remember this. आप एक रिमाइंडिंग मैसेज उसे उस दिन जरूर भेजें। तो इस प्रकार हमें 2 रिमाइंडिंग मैसेज उसको भेजने पड़ते हैं। Now after that the people have registered and they have come. इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी सत्या। हाँ, देखिए जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो आजकल, अगर आप, ये है सर ने बताया फ्री टूल, फ्री टूल के अलावा पेड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज 100 पीपल रजिस्टर टू वेबिनार, ठीक है। अब उनको 2-3 घंटे पहले बताना है कि भाई हमारे प्रोग्राम में आ जाओ। तो आजकल एक खास फंक्शन है जहां आप में से बहुत लोगों ने के पास ऑटोमेटेड कॉल आता होगा। मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, जो दिल्ली के लोग होंगे उन्हें पता ही होगा, ठीक है। 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, कितने लोगों ने सुना है? प्री रिकॉर्डेड कॉल आएगा, कुछ बोलेगा बंदा, अपने आप फोन कट जाएगा 30-40 सेकंड के बाद। किसी ने सुना है अभी तक? यस, कई लोगों ने सुना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ऑटो, जिसमें वॉइस कॉल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जो लगभग 40 से 50 पैसा पड़ता है पर कॉल, 40 to 50 पैसा। तो आपके पास 100 लोग रजिस्टर हुए और आपने 100 लोगों पे कॉल कराया, तो आपके 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। 100 रुपए नहीं, लगभग अंदाजा लगा लीजिए कि 50 रुपए के आसपास, ठीक है। तो आपका कॉल जा रहा है उनको ठीक वेबिनार से पहले, फॉलोड बाय एसएमएस, क्योंकि आप एक शॉट से 100 लोगों को 1 सेकेंड में एसएमएस आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कई बार नंबर ब्लॉकिंग की समस्या रहती है। तो 2 ऐसे चीजें, क्योंकि दोनों पेड है, एसएमएस भी पेड है और जो ऑटो कॉल है, वॉइस कॉल, वो भी पेड है। तो इससे क्या होगा कि कन्वर्जन, लोग जब आते हैं वेबिनार में वो थोड़े बढ़ जाएंगे। लेट सपोज मैंने और आपने अटेंड किया कोई वेबिनार जो रात के 8 बजे है, और सोचो 1 घंटा पहले आपके पास कॉल आता है कि अलका जी कि आप आपको एक छोटा सा एक ऑडियो कैसे कि हमारे वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद, 8 बजे आज वेबिनार है, प्लीज इस टॉपिक का वेबिनार पे ज्वाइन कर लेना। तो यू विल बी हैप्पी कि यार उन्होंने मुझे फोन करवाया। एक तो ग्रेटफुलनेस होती है, सेकेंडली ब्रांडिंग का बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये अगर एड ऑन अगर आप खर्च करना चाहते हो उसमें खर्च कर सकते हो, ताकि लोग उससे थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर 100 लोग रजिस्टर करते हैं, 100 के अंडर कभी नहीं आते, हाफ के आसपास आदमी आता है उस वेबिनार में, हाफ, आप समझिएगा। कई बार वो भी तब आएगा जब संडे होगा, अगर वर्किंग डे होगा तो कंटेंट और भी कम, क्योंकि आजकल लोग बिजी बहुत होते हैं। तो इस पे ध्यान रखना। और एक बार कॉल हो जाता है तो कई बार लोग ज्यादा आते हैं। आप में से कई बार जो लोग पेड हमारे कस्टमर जुड़े हैं, कई बार आपको कॉल किया होगा जब वेबिनार लोग कमाए कि सर प्लीज वेबिनार ज्वाइन कर लो, तो ऑलमोस्ट लोग ज्वाइन करते हैं, अच्छा वेबिनार चल रहा है। तो आप इस तरीके से भी अपनी अप्रोच को बढ़ा सकते हो। प्लीज सर कंटिन्यू सर। सर एक सवाल है। यस मैम, पूछिए। कई बार हम देखते हैं कि जो हमें मेल मिलते हैं ना, तो वहां पे जूम मीटिंग या उसका आईडी नहीं होता है, क्लिक हियर टू ज्वाइन, और फिर जैसे ही हम क्लिक करते हैं सीधा हम मीटिंग में चले जाते हैं। वो वाला जो लिंक होता है वो कहाँ से जनरेट होता है? वो भी जूम में है, और जूम में 2 तरह का रहता है। एक में आप देख पा रहे हैं वेबिनार में कितने लोग हैं, ठीक है। हाँ। एक देखते हो उसमें दिखता ही नहीं कितने लोग हैं वेबिनार में, ठीक है। जी सर। ठीक है, वो भी लिंक आप जब वो प्लेटफॉर्म आप लोगे तो उसमें लिंक जनरेशन का सिस्टम होता है, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। वो आप मेल में इंटीग्रेट कर दो, क्लिक करेगा बंदा, सीधे रीडायरेक्ट होगा वहां जाके, वो डिफिकल्ट नहीं है मैम, ठीक है। ओके, तो वो सिस्टम जूम में है? वो सिस्टम जूम में है, वो सब प्लेटफॉर्म में होता है। क्लिक करते ही वो रीडायरेक्ट करेगा आपको, वहां ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट उसके उसका समझ देगा। एक आपने जूम मीटिंग का लिंक डाला जो आपके पास आता है, जहां आप देख पाते हो कितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं। एक जूम वेबिनार होता है, ठीक है ना, जहां जूम वेबिनार में आप ये चेक नहीं कर सकते कितने लोग आ सकते हैं। वो कॉस्टली होता है थोड़ा सा मैम, ठीक है, वो इससे कॉस्टली होता है। तो जब अगर लोग कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको, बेटर है आप जूम मीटिंग लेके उसको फॉरवर्ड करें, तो आपका बेटर रहेगा। यस, वो हमें होता है अप्रोक्सीमेट 7,000 पर मंथ का लाइसेंस बनता है उसका। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सत्या?
यस दिख रहा है सर, दिख रहा है जूम वेबिनार और जूम मीटिंग जो हम यूज करते हैं $15 पर मंथ या सर। $12 एक पर रिक्वेस्ट month। है आपसे, जी, जूम वेबिनार और जूम मीटिंग में डिफरेंस बताए लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में। जूम मीटिंग और जूम वेबिनार दोनों में डिफरेंस ये है कि मीटिंग में एवरीवन हैज राइट टू ओपन कैमरा एंड माइक, everyone can share screen if you allow, then any member which is present over there can share screen, can open camera, can open mic. In webinar only few panelists are authorized, they can open their camera, they can open their screen sharing, they can open their mic. Not everyone can do this exercise, so the control is ग्रेट ओवर इन वेबिनार। एक चीज वहां ये अच्छी है। प्लस अगर वेबिनार में हम क्या करते हैं कि वेबिनार के रजिस्ट्रेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जूम में वेबिनार के रजिस्ट्रेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इन केस अगर मैंने वेबिनार का सब्सक्रिप्शन लिया, जूम इवेंट्स एंड वेबिनार, so this will register people automatically. In case you run an advertisement, they will just get the details of the people automatically. Zoom will collect the details and it will allow to go directly to the webinar. In case webinar is starting or webinar has been started, then it will allow directly to the person to enter in the webinar. एक तरीका तो ये है कि वेबिनार चल रहा है तो वो डायरेक्ट अलाउ कर देगा और बिना रजिस्टर किए, बिना लीड्स के कांटेक्ट लिए वो आपके वेबिनार में एंट्री देगा ही नहीं। एंड ईमेल रिमाइंडर्स विल गो थ्रू जूम ओनली, यू नीड नॉट टू राइट एन ईमेल, जूम अपने आप उसको ईमेल भेजता रहता है। और अगर आप पेड इवेंट कर रहे हो तो लोग जो पे करेंगे उनको ईमेल भी जाएगा, रिमाइंडर भी जाएगा, ऑटोमेटिक उनके अटेंड करने के लिए उनको रिमाइंडर चला जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय जूम, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग मैनुअली, सब जूम से हो सकता है। एक तरीका ये है जूम का। एंड देयर इज वन मोर वे, दैट इज आई एम गोइंग टू शो यू गेट वेबिनार किट। This is Get Webinar Kit. Nowadays it is available on $77. It's a one-time cost for lifetime. Webinar Kit pricing is $72 per month. And 2 months ago it was $67 per month. And this is the one-time cost, one-time payment for lifetime. In case you pay this amount, then this Get Webinar Kit gives you a facility for automated webinar. Automated webinar क्या है? One time you have recorded one webinar, and that recorded webinar you put on this automated webinar kit, and then if somebody is seeing your advertisement and clicking to watch webinar, registering for webinar, immediately the webinar starts over there. And because it's a recorded webinar, so anybody can watch your webinar anytime without any human intervention, and even you do not know कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, you just have the data, बाद में आपको डेटा आता रहता है कितने लोगों ने इसे देखा। You can make it paid, you can make it free, and you can also make it that the webinar is going to start in next 5 minutes. Actually there is no any 5 minutes, it's a recorded webinar. It is just the person is thinking that webinar is getting started in 5 minutes and he just registering, and immediate after registering the webinar gets started. ये भी होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन गेट वेबिनार किट पर अवेलेबल है। आप यहाँ से $72 देके इसे ऑटोमेट कर सकते हो। आप अपना एक बार वेबिनार रिकॉर्ड कर देना एंड लाइफ टाइम वो वेबिनार प्ले होता रहता है और लोग रजिस्टर करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। तो एक तरीका ये है। तो एक जूम का सिंपल सब्सक्रिप्शन है, मीटिंग सब्सक्रिप्शन जो हम यूज कर रहे हैं, जिस पर आज मैं और आप कनेक्ट हैं, ये भी जूम का सिंपल सब्सक्रिप्शन है, which is costing us around $15 per month. But in case you are going to have a webinar, photo event webinar from Zoom, you have to pay around 7,000 rupees per month. And in case you want to make it automate through recorded webinar, then you have to go to Get Webinar Kit. यहाँ जाके $72 में वन टाइम यू कैन टेक इट। आई थिंक क्लियर हो गया सबको ये? बहुत सर बढ़िया है सर। थैंक यू। चलिए।
Next. You have informed everyone in advance. Now the time has come when you should start your webinar, your time of your big examination. आपके असली खेल अब होने वाला है. जब आपने वेबिनार कंडक्ट कर रही, वेबिनार शुरू की, तो आपको क्या करना है? You have to start a webinar with a great energy. Good morning, Rafat. Good morning, Joshua ji. Good morning, Bhavisa ji. Good evening, Bhavisa ji. So the trainer should, or the person who is going to deliver, he should start with a high energy. Room mein, because people are connecting from far places and they are in different moods, different mood swings, different orientations. So when they are together, and if you put energy in the room, then they get connected with you. And if you are just speaking with a little voice or lesser pitch, so without great energy over there, then people will not get connected. जब लोग कनेक्ट नहीं होंगे तो आपकी वेबिनार में मजा नहीं आएगा. तो शुरू में आपने देखा होगा जितने लोग अनाउंस करते हैं वो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर वो एनर्जी ओरिएंटेशन के लिए बोलते हैं ताकि सब लोग एक एनर्जी लेवल पर आ जाएं, सबके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक तरफ इकट्ठे हो जाएं और वो जिस पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं उस पर्पज पे वो आगे डिलीवरी शुरू हो जाए. तो हमें बहुत एनर्जी के साथ शुरू करनी है. जैसे सत्या कहते हैं सुप्रभातम, नमस्कारम, कुछ ना कुछ बोल के लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना है. तो ये हमें प्रेजेंटेशन में शुरू करना है. एंड वन मोर थिंग, that the introduction and pitching parts should be taken care by somebody else, not by the main person who is going to deliver the talk. There should be minimum 2 people. एक आदमी इंट्रो पार्ट दे, पिचिंग करे और फिर वो इंट्रोडक्शन देकर दूसरे आदमी को पिच करे वहां लाके. जैसे जब भी सत्या को डिलीवर करना है, then I start intro part. When I have to deliver something, Satya starts the intro part. तो वो पहला 5 मिनट कोई और डिलीवर करे, then you come over there as a special guest. तो आपको भी हमेशा यही करना है कि एक आदमी को जरूर रखना है जो आपको पिच करें वहां, जो लोगों का इंट्रोडक्शन लें, लोगों को समझें, लोगों से बात करें. 5 मिनट बाद इंट्रोडक्शन देके वो आपको एज ए स्पेशल गेस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट, एज एन एक्सपर्ट प्लेस करें और फिर आप डिलीवरी दें. So this is the right way to conduct a webinar. तो ये 2 चीजें हमें करनी है, हाई एनर्जी देनी है और intro part should be taken care by somebody else. And then during your delivery, please use audio visual aids. Either you use over images, more audios, more videos, so that people should like seeing the things. लोगों को देखना अच्छा लगता है. तो हमें भी क्या करना है, वहां वीडियोस रखना है, ऑडियो विजुअल बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है. आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस. यू हैव टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस सो दैट पीपल शुड फील कनेक्टेड, दे शुड फील वैल्यूड. डोंट गिव योर टॉक अलोन. आप अपनी बात ही एक तरफा बोलते जाओगे, लोग बोर हो जाते हैं, उबासी आनी शुरू हो जाती है लोगों को. तो हमें क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछने, नेम से क्वेश्चन पूछने. यस जयसवा मैम आप बताइए ये क्या है, भाविशा मैम आप बताइए. यस अभी सूरज दुरुपकर जी आपका कौन सा डेट है जिसको आप वेबिनार करने वाले. मैं नाम से पूछ रहा हूं तो आपको अलर्टनेस आती है, ओह मेरा नाम बोला गया रूम में. तो यू ऑल्सो कॉल द नेम्स ओवर देयर एंड इट विल एक्चुअली एंगेज एंड इट विल गिव अ फील गुड फैक्टर टू द पीपल हु आर प्रेजेंट देयर. वहां उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई नाम से पुकारता है, कोई एक्सपर्ट जब नाम से पुकारता है, कोई की पर्सन, कोई की एक्सपर्ट जो आज टॉक डिलीवर कर रहा है और वो आपका नाम पुकारे तो आपको अच्छा लगता है. तो यही काम लोगों को अच्छा लगेगा जब आप उनको बुलाएंगे उनके नाम से. एंड कीप मूविंग, डू नॉट स्टक ऑन ए सिंगल पॉइंट, प्लीज ट्राई टू मूव ऑन. एक जगह रुकना नहीं है, बहुत स्लो नहीं जाना, बहुत फास्ट नहीं जाना, बहुत अच्छे रिदम से जाए और आप अपने टॉपिक में उतरते जाएं, लोगों को एंटरटेन करते जाएं. सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा बैक जाना थोड़ा सा. यस प्लीज. देखिए अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जब सब कुछ आ जाएगा तब वेबिनार करेंगे, जब मैं प्रेजेंटेशन अच्छी देने लगूंगा तब बोलूंगा.
अगर आप इस मूड में रहेंगे तो शायद आप प्रेजेंटेशन कभी दे ही नहीं पाएंगे। आप जैसे हैं, देखिए बच्चा भी चलना सीखता है ना तो 10 बार गिरता है तब चलना सीखता है। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है या आप सोचते हो अच्छा नहीं बोल पाता, तो आप उस पल का इंतजार ना करें कि कब मैं अच्छा बोलूंगा तब वेबिनार करूंगा। और अक्सर मैं देख पा रहा हूँ जो लोग करना चाहते हैं वो परफेक्शन का वेट करते हैं और परफेक्शन आने में बहुत समय लगता है, कई बार वो आता ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जैसे उसको स्टार्ट करें और समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट करें। दूसरा है कि भाषा, अक्सर जब मैंने स्टार्ट किया था अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लोग कहते हैं कि यार अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलोगे तो लोग सुनेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आपकी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज को बेधड़क बोलो, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बस सब्जेक्ट नॉलेज हो आपके पास। देखिए आप जब दूध लेने जाते हो ना तो आपको दूध की क्वालिटी से मतलब होता है, वो सबसे मेन होता है। मतलब नहीं कि आपका कंटेंट हिंदी में है कि इंग्लिश में है। अगर आपका वर्नाक्युलर लैंग्वेज कंटेंट है और आपके ऑडियंस को समझ आ रहा है तो हिंदी में भी धड़क दो। कभी ये मत महसूस करो कि अंग्रेजी नहीं आती ना। मैं आप देखिए हमारे सारे वेबिनार हम हिंदी में करते हैं, ठीक है। इवन साउथ इंडियन लोग हमारे वेबिनार में आके हिंदी सीख के जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर कई बार लोगों ने मुझे कहा कि तू इंग्लिश बोल। मैं कहा नहीं यार, जो मुझे आता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैं वो बोलूंगा। तो मेक श्योर भाषा कभी भी आपका रोड़ा नहीं बन सकती, रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। लैंग्वेज स्पेशली आपके वेबिनार में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंट, उसके साथ साथ क्या वैल्यू दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा जो हमने देखी, लोग कहते हैं कि वेबिनार में प्रोफेशनल रहो, पूरे प्रोफेशनल रहो। अच्छी बात है प्रोफेशनल रहो, पर जब आप कुछ ना कुछ उसमें पर्सनल एंगल डाल देते हैं, पर्सनल टच डाल देते हैं, तो वो प्रोफेशनल से थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो उसमें लोग रिमेम्बर ज्यादा करते हैं। लेट सपोज हमने वेबिनार स्टार्ट किया, यस भाभी मैम कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, नॉर्मल कुछ कुछ थोड़ा सा आउट हो तो लोगों को पर्सनल टच लगे। आप यकीन नहीं करोगे, प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा पर्सनल टच बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो ये चीज अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगेगा और आपके जो जो कनेक्ट है, आप जो कनेक्टेड है क्लाइंट आपसे, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रोफेशनल रखिए, पर जब तक उसमें पर्सनल टच आप डालेंगे ही ना, आप यकीन नहीं करेंगे आप ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाएंगे। तो पर्सनल टच डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर इतना ही बताना सर। चलिए, थैंक यू सत्या। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया, कंडक्ट कर लिया, यहाँ हमें आगे बढ़ते जाना है और ह्यूमर का बड़ा ध्यान रखना है। सत्य आपने देखा होगा बीच बीच में ना कई बार घर की बातें ले आते हैं, फन ऐड करते हैं, कभी वो घरवाली को बीच में ले आते हैं, कभी ऐसी चीज शेयर करेंगे जिससे आपको लगेगा आउट ऑफ वे है, बट एक्चुअली आप रिफ्रेश फील करते हो। उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमर आता है। जब तक ह्यूमर नहीं आएगा, लाइटर वेन नहीं आएगा, तब तक आप बिल्कुल रिफ्रेश नहीं होंगे टॉपिक में। जब डीप डाइव कर रहे होते हैं टॉपिक में तो यू हैव टू रिफ्रेश वंस और ट्वाइस ओवर देयर। आपको बहुत लाइटली लेना चाहिए, वहाँ हंसी मजाक थोड़ा होना चाहिए। यू शुड हैव सम एंटरटेनिंग ओवर देयर, एंड इफ दिस एंटरटेनिंग approach is coming from the key person who's delivering something, then people feel good over there. अगर ये सत्या की तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है, तो आपको अच्छा लगता है। तो यही काम आपको करना है कि आपके टॉपिक को यू प्लीज डू नॉट मेक इट बोरिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग यू शुड मेक इट एंटरटेनिंग। आप इसको थोड़ा मजेदार, थोड़ा नमकीन, थोड़ा तड़का लगा के ऐसा अच्छा लगे, and try to make it in the approach of general to specific. Whatever is known, to take it towards unknown. Whatever is general, take it to the advanced. Whatever is old, take it to the new. पहले लोगों को जो पता है वो पूछो क्वेश्चंस में। अच्छा, कौन कौन जानता है वेबिनार कैसे कंडक्ट होती है? तो आप सब बताएंगे, मैं जानता हूँ। अच्छा आप बताओ, जूम पर वेबिनार कैसे कंडक्ट होती है? सब जानते हैं। अच्छा आप बताओ, वेबिनार किट पर वेबिनार कैसे कंडक्ट होती है? ओ माय गॉड, अब नहीं जानते। सो दिस इज द न्यू थिंग। नाउ प्लीज मेक देम लर्न हाउ यू कैन कंडक्ट अ वेबिनार ऑन वेबिनार जैम। नाउ पीपल विल टेक इंटरेस्ट दैट, oh, I know on Zoom, but webinar kit I don't know. So
You can make it learn from general to specific, old to new, known to unknown, and in an entertaining way. बहुत entertaining way में आप कहेंगे चलिए दोस्तों आज सीखते हैं कैसे वेबिनार कंडक्ट होते हैं। अच्छा कौन कौन सीखेगा मेरे साथ? अच्छा तो आज आप वेबिनार सीखेंगे। Like this, you put some entertaining and lighter vein humor over there, ताकि लोग आसानी से आपके टॉपिक को डाइजेस्ट कर सके, समझ सके। And you have to ask more and more questions over there so that people feel connected. And after that, please do not forget to collect feedback. Every time in every webinar, Satya collects feedback. आप बताइए किसको अच्छा लगा और जिसको बुरा लगा वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम अगली बार के लिए उसको चेंज करें, इम्प्रूव करें। तो ऑलवेज कलेक्ट फीडबैक इंस्टेंटली। These feedbacks are on record testimonials for you. If they are good, then obviously they are good. And if they are not good, then they are good than the good. Means you have to focus in the improvement areas. In case somebody is putting the improvement point over there, then you should honor, you should show gratitude to that person because he is just encouraging, he or she is encouraging to put the feedback over there on stand on your face. अगर कोई देके जा रहा है तो वो बहुत बड़ा योद्धा आदमी है, बहुत हिम्मत करके आपको फीडबैक दिया और उस फीडबैक को आपको ऑनर करना चाहिए, पब्लिकली ऑनर करना चाहिए। अगर किसी ने गलती भी की है, जैसे आप यहाँ कुछ सुना के भी जाते हैं तो हम पब्लिकली ऑनर करते हैं। हमें लोगों ने गालियां दी हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, हमने उनको ऑनर किया है। अगर हम उनको लड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। We have to grow more, so we have to just honor whatever is the reaction and the expression is from the people. So we have to think in ourselves whether there is a chance, whether there is a scope to improve it further. If it is there, then we should take it positively. मैं इसमें सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। Yes, Satya, just I will take 1 minute only, please. Yes, sir. Okay. Then the 11th part is, and this is the last point, where just keep one product and one item for the last, and which is a very bombarding item, and always announce that please do not go anywhere. So we have one very significant item for you for the last, and before that you pitch your product over there silently. जब आपकी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी आपने, you have created your curiosity for the last big item, people will stay over there, and then you should pitch your product in between. उससे पहले आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर दो, अदरवाइज जैसे ही प्रोडक्ट पिच करोगे people will start leaving your webinar. आपकी बात सुनने के बाद प्रोडक्ट आते ही लोग वेबिनार छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो you please hold one big item for the last and just announce it that still we have to deliver one item which may change your business, your career, your life. Actually, that is the big thing, and which is still pending to deliver. And in meanwhile, you pitch the product that in case you want to change your life completely, in case you want to take the solution completely from us, then this product is there. And if product की features को ज़्यादा बताना है, price को बहुत कम बताना है last में. Price should be disclosed on demand. जब लोग पूछे तो price बताओ, और बहुत साइलेंटली प्राइस को आपको पिच करना है, और प्रोडक्ट जैसे ही पिच हो जाए देन गो टू द लास्ट वन आइटम व्हिच इज योर लास्ट आइटम, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू कंडक्ट अ वेबिनार सक्सेसफुली। ऐसे आप एक अच्छे वेबिनार को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाओगे। यस सत्या, नाउ इट्स अप टू यू। सर नंबर 9 एक बार बोल दीजिए ना, क्या था नंबर 9? क्या था? एक मिनट सर। Number 9 was answer more and more questions. Okay, sir. Thank you. So, yes, Satya, now it's over to you. थैंक यू सर। देखिए जब वेबिनार हमने स्टार्ट किया था, जब लॉकडाउन लगे थे तो अक्सर वेबिनार हमें कंडक्ट करना पड़ता था। तो कई बार जब स्टार्ट किया था, आप समझिएगा स्टार्ट करने के बीच में आपके पास हो सकता है टेक्निकल इश्यूज आए। एक बार वेबिनार करते करते जूम में कुछ इश्यू हो गया, हम प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाए, तो लोगों ने कई बार कमेंट ऐसे भी थे जो डिमोरलाइज करने वाले थे कि यार 2 घंटे आपके हमने वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा पर्टिकुलर सो एंड सो, अलग अलग जो सो कॉल्ड ट्रेनर उस समय थे उसका नाम लेके हमें बताते थे
ठीक है, एक मैं एग्जांपल, एक बंदे ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ राजशेखर कंटेंट दो कितना बढ़िया लेक्चर देता है, तो इस तरीके से हमें टॉन्ट किया जाता है, आप समझिएगा कि उसको हमने पॉजिटिव लिया कि चलो ठीक है, हम वो कॉस्ट तो नहीं दे सकते, पर हम जिस कॉस्ट पे सिखाएंगे उस कॉस्ट पे सिद्धार्थ राजशेखर सिखाएगा नहीं आपको कभी। हमने उसको लिया, अपने कॉस्ट को लिया, अपनी स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव किया। आप यकीन नहीं करोगे, देखिए जरूरी नहीं कि देखिए लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना ऊपर जाते हैं, कितनी बार आप गिर के उठते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो डिमोरलाइज कभी नहीं होना, और क्योंकि आप टेक्निकली जुड़े हो, कई बार टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, कई बार नेटवर्क इशू हो सकता है, 50 चीजें हो सकती है वेबिनार में, जो कहीं ना कहीं अगर कस्टमर को फ्री में भी टाइम नहीं मिल पाता तो भी आप डिमोरलाइज नहीं होना, और हर एक सेशन के बाद फीडबैक पक्का लीजिएगा ताकि आप ढंग से नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके आप कर सके। चलिए, यस, सुबह की जो क्लास हुई थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, लोकमान सर ने कहा था कि वो लिंक सेंड करेंगे कैनवा की, तो कैनवा का करने वाले हैं। मैं पूछ के बताऊंगा छोटी, कौन सा लिंक है मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं। ओके सर। चलिए, कोई सवाल है आपका वेबिनार को लेके आज, प्लीज पूछिए। है सर, मेरा एक सवाल है। यस मुकेश जी। सर एक तो आपने दो अभी बोला है, कॉल, रिकॉर्डेड कॉल और मैसेजेस वाला, वो कोई वेंडर का नंबर वगैरह कोई दीजिए। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। नहीं तो आप कल हमें 10 से 12 कॉल कर लें तो हम 2-3 वेंडर के नाम बता देंगे, आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी फीडबैक के लिए पूछा है तो मैं थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ, पर माइंड मत करिएगा। जरूर जरूर, हमें अच्छा लगेगा साहब। सर एक तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था आप जूम की कुछ उसकी सेटिंग्स के बारे में बताओगे, क्योंकि यहाँ पर सभी हैं जो भी वेबिनार करने के रिगार्डिंग अभी सोच रहे हैं, तो जूम की कुछ सेटिंग्स हर बंदे अनअवेयर होगा ना, हेजिटेशन तो मेन वहीं से शुरू हो जाती है वेबिनार करने के रिगार्डिंग मेन, क्योंकि पता नहीं है उस ऐप के बारे में इंटरनल फीचर्स। तो दूसरा एक पीपीटी बनाने के रिगार्डिंग, मैं ये दो चीजों को लेकर काफी देर से कंसंट्रेशन में हूँ, पहले ये फुल स्टॉप भी लग जाता है। देखिए समझिएगा, यूज टू नहीं हूँ ना। हाँ मैं समझिए आपकी बात। देखिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीजें, पर मुझे नहीं आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, फीडबैक बहुत बढ़िया है आपका। बट आज के सेशन में हमने कोशिश की कि वेबिनार की साइकोलॉजी को समझें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें वेबिनार के कंडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हम रखेंगे एक पार्टिकुलर खास, जो एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, लेट्स सपोज जूम पे कैसे करना है, तो जूम के फंक्शंस को बताएं, किन बातों का ध्यान रखना, पोलिंग आपको कैसे करनी है स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हो कई बार मैं स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ, पीपीटी बैकएंड में होती है, वो आप कैसे लाएं, वो हम किसी नेक्स्ट सेशन में आपको कराएंगे। बट इसमें क्या है कि आप पहले साइकोलॉजी को समझें, किस तरीके से वेबिनार कंडक्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट था पहले। इसके बाद हम सेशन वो लेके आएंगे ताकि डिटेल, अब इसमें आप देखो, जैसे ये आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर प्रेजेंटेशन लगती है, तो ये आपको कैसे करना है, ये सब चीजें ये हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो लेटर पार्ट्स में होगा सर। ठीक है सर। सर अच्छा सर, मेरा एक सवाल था इसके रिगार्डिंग, अभी आपने जो किट के बारे में बताया, अभी जो $72 वाला किट, वो रिकॉर्डेड वेबिनार के लिए है या उसमें लाइव वेबिनार ले सकते हैं? सर वो रिकॉर्डेड के लिए सर। ठीक है सर, रिकॉर्डेड के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और सवाल? और एक सवाल था। यस भविष्य मैम। हाँ सर, वेबिनार आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, कितना टाइम का लेना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए आपका, मेरे हिसाब से आपका 70 मिनट आप रखिए, आप इंफॉर्मेशन का, 20 मिनट रखिए सेलिंग का जी। एक 70 मिनट में आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दीजिए। 90 मिनट लोग ज्यादा रुकते नहीं है, ठीक है। 70 मिनट आप ढंग से डिलीवर कर लीजिए, क्योंकि आपका टॉपिक नॉन टेक्निकल है, ठीक है, तो उसमें 70 मिनट बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि 1 घंटा आप आराम से वेट कर लेते हैं। बाकी 20 मिनट आप सेल्स के ले सकते हैं, सेल को पेश कर सकते हैं, सेल को लेकर लोगों की क्वेरी है वो आप ले सकते हैं। सेकेंड, एक चीज का ध्यान रखना, वेबिनार होने के बाद अक्सर लोग लीव कर देते हैं या ट्रेनर तुरंत खत्म कर देता है। कोई भी सवाल आपके टॉपिक से या उस टॉपिक के बाद भी आप जितना Q&A देंगे ना, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम है, लेट्स सपोज मैंने 1 घंटे का वेबिनार रखा,
70 मिनट का वेबिनार है, 20 मिनट का मैंने सेल रखा, इवन आफ्टर 20 मिनट अनयूजुअल डिस्कशन हो सकती है ताकि आपका रेपो बिल्डअप हो, ये भी आप कर सकते हो। जी। और हम टेस्टिमोनियल्स कब कब वेबिनार में दे सकते हैं? ओके, टेस्टिमोनियल में आप कर सकते, देखिए डिपेंड करता है, या तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट, ठीक है, छोटा, ज्यादा लंबा ना हो, 40 सेकंड का, कि मैंने ये प्रोग्राम किया, मुझे ये फायदा हुआ, ये कर सकते हो। या जब आप प्रोडक्ट पिच करने वाले हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट पिच करने वाला हो तो एक छोटा सा कंटेंट आप दिखा दे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, लोगों के क्या व्यूज है इसके ऊपर, 40 सेकंड का, ज्यादा लंबा, क्योंकि ज्यादा लंबा टेस्टिमोनियल किसी को देखने का मन नहीं करता, ये टाइम सबसे बेस्ट है। दूसरा है कि बिना स्पेसिफिक चीजों के, लेट सपोज मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स कराने वाला हूँ, तो मैंने कहा वेबसाइट डिजाइनिंग में ये करना है, वो करना, उसी में एक पीपीटी में वीडियो लिंक इंसर्ट कर दूंगा जहाँ कस्टमर मेरे बारे में बता रहा होगा, मेरी वेबसाइट ऐसी थी, उसने ये फायदा हुआ, ये उसमें मैं ऐड ऑन कर पाया, तो इनडायरेक्टली वो मेरे टेस्टिमोनियल में काउंट अप हो रहा है। समझ पा रहे हैं मैम? जी जी। तो वो एक बहुत क्लेवरली आपने मोल्ड कर दिया, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लेट सपोज मेरा मेमोरी ट्रेनिंग का वेबिनार था, तो वहाँ एक मैडम थी, इनके सर में चोट लग गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था, और ट्रेनिंग के बाद वो काफी अच्छा इंप्रूव कर पाए। तो मैंने उनसे बोला कि आप टेस्टिमोनियल ऐसे मत देना कि मैं इंप्रूवमेंट कर पाई, मैंने कहा ऐसे टेस्टिमोनियल दो कि ऐसे चीजों में ऐसे करने से फायदा होगा, मैंने फायदा इस तरीके से किया है, फिर बाद में कहना मैंने याद सीखा है। आप समझ रहे हो? तो कंटेंट बेस्ड टेस्टिमोनियल होगा तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल ज्यादा होता है। लेट सपोज भाविशा जी, आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और कोई कस्टमर कहता है कि गर्भ संस्कार में मुझे ये दिक्कतें आई थी, मैंने ऐसे ठीक की, और ये सब भाविशा मैम का करिश्मा है, ऐसे करके जो कंटेंट वाइज आप डाल दोगे ना, जो कंटेंट स्पेसिफिक हो, तो उसमें थोड़ा दम और ज्यादा हो जाता है, बट वो हर जगह काम नहीं आ सकती, ये दिक्कत होती है। ये टॉपिक वाइज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही चलेगा, बट इट शुड बी लेस देन 40 सेकंड। और एक सवाल था सर। यस मैम, पूछिए। आजकल मैं देख रही हूँ सर, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स जो है ना, उनके वेबिनार्स में पोल्स आते हैं। हाँ हाँ, तो ये पोल्स का क्या? पोल्स का ऑप्शन जूम में भी है मैम, ठीक है। हाँ। जूम में भी पोल्स का ऑप्शन आता है जहाँ आप पोलिंग कर सकते हैं। नहीं, मुझे टाइमिंग जानना था कि पोल्स वेबिनार में कौन से टाइम पे कब कब लेना चाहिए? ओके, पोल्स में बेटर होगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार, लेट सपोज मेरे वेबिनार में अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, मैं ठीक है, आप मुझे बताएं किस किस कैटेगरी को, आप टक टक 3-4 पॉइंट में डाल दिया, तो एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल हो, वेबिनार के जस्ट स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद। सेकेंडली, आप एक पोल और लगा सकते हो, जो लोग इंटरेस्टेड हो परचेज करने के लिए लास्ट में, बट वो पोल पब्लिकली नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को। लेट्स सपोज आप कोई वेबिनार कर रहे हो, लोग कम इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसमें कुछ आप पोल पब्लिकली कर सकते हो, कुछ अपने लिए कर सकते हो। तो स्टार्ट में कर सकते हो, प्रोडक्ट से पहले पिचअप कर सकते हो पोल मतलब कुछ चीज कुछ टॉपिक स्पेसिफिक होगा। लेट सपोज हमारा प्रोग्राम लीड जनरेशन का है, ठीक है सर, लीड जनरेशन आप किस किस प्लेटफॉर्म से करते हैं, ठीक है। कई बार पोलिंग आप मल्टीपल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे वेबिनार कर रहे हो। मैं अपने से किस लेता हूँ, लेट्स सपोज हम लीड जनरेशन पे वेबिनार कर रहे हैं, तो फर्स्ट मैंने पोल किया कि मुझे बताओ किस किस कैटेगरी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हाउसवाइफ कितने, एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं, ये मैं डाल दिया। सेकंड, मैं कुछ मिनट बोला, मैं कहा ठीक है, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करते हो लीड जनरेशन के लिए, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, मैंने 3-4 लिंकअप कर दिए, वो लोग सबमिट करते जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, हाउ मेनी इफ यू हैव पेड एड्स, जस्ट टाइप यस और नो, तो पेड एड हो गया। तो वो जो पोल्स हैं, इट इज एक्टिंग, आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको इंटरेक्शन बिल्डअप में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप कंटेंट बेस्ड आप पोस्ट करेंगे, कंटेंट बेस्ड एक होता है प्रोडक्ट की सेल बेस्ड पोल, बेटर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड सेल बेस्ड आप रखोगे पोल्स, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि लोग इंटरेक्शन लोगों को बहुत पसंद है, जितना इंटरेक्शन आप रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ओके, मतलब ऑडियंस को एंगेज रखने में पोल्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यस, एंगेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। सेकेंडली, बीच बीच में सवाल पूछना कि ठीक है आपको समझ आया कि नहीं, किसी को वॉलंटियर करना,
ठीक है भाई, जरा आप अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि अक्सर कई बार मैं देखे हैं कुछ वेबिनार ऐसे होते हैं जो चल तो रहे होते हैं पर वहां कोई वेबिनार कर रहा नहीं होता है। एक तो ये अक्सर में लोगों ने कहा लगता है हो रहा है पर एक्चुअली कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। सेकेंडली, अगर आप किसी वेबिनार में आप ट्रेनर हैं और ट्रेनर इंटरेक्शन कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही को लगता है कि यार मुझे शायद वैल्यू ना मिल पाए। तो इंटरेक्शन, कस्टमर का ट्रस्ट विनिंग मतलब जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी कोई और सवाल आज का आपको? सत्या जी, सवाल नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट। ये मुझे आपका और लोकमान सर का जो सेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली देयर वाज, आपने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि, क्योंकि जैसे दो आप पॉइंट्स जो आप बोल रहे थे वो सब आप एक्चुअली लिव कर रहे थे इन द वीडियो, इन द प्रेजेंटेशन। मतलब जैसे इंट्रोडक्शन हो, एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरा वाला एक्सपर्ट में कर रहे हैं, द वे यू ब्रिंग अबाउट द ह्यूमर इन दिस, सो ऑल दिस आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि आप जो भी सिखा रहे थे वो सब एक्चुअली आप वो करके भी मतलब हमको एक तरीके से सिखा रहे थे। So it was very nice and very engaging actually today's session. Thank you very much for that. थैंक यू सर। तो देखिए, जो हमने जो आप लोग ऑलरेडी अटेंड करे तो हम क्या छुपे छुपे कैसे आपसे, ठीक है। तो सर आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मैंने जरा 1 घंटा लेट ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम, ऐप में आ जाएगा आपका रिकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। तो सर आज एक और सवाल है। यस पूछिए मैम। सर ये वेबिनार जब शुरू हुआ ना तो एक स्लाइड था जहाँ पे वेबिनार में मतलब वो यूजेस में वो परसेंटेज वाइज लिखा हुआ था। 85% क्वेश्चन एंड आंसर के टूल्स, 38% सोशल शेयरिंग, 22% ऑफर पोल्स, 10% ऑफर सर्विस एंड 4% कोलैबोरेट ऑनलाइन। अब ये कोलैबोरेट ऑनलाइन क्या होता है? मैम ये पोर्शन लोकमा सर ने कराया था और पीपीटी मेरे पास है नहीं, तो मैं शायद आपको अच्छा, वो किस सेंस में दिया था मैं आपको शायद बता ना पाऊंगा मैम, ठीक है। तो मैं आपको आप मुझे कल कांटेक्ट करना तो मैं बता पाऊंगा मैं उसको किस सेंस में उन्होंने लिखा था। वही पीपीटी मेरे पास है नहीं मैम वो। मेरा आना तय नहीं था वेबिनार में, मैं तो आज आ गया, ठीक है। तो ये है। कोई बात नहीं सर, आपने तो वैसे भी बहुत बहुत सर्व करते हैं आप। अब मैं आप सबसे किसी एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने क्या सीखा है जो आप अपने वेबिनार के प्रेजेंटेशन में आप इम्प्रूव करोगे। आप में से कोई भी आप बताएं किन बातों का आगे ध्यान रखोगे आप। मैं बताऊं सर? यस मैं वीडियो खोल लो मैम अपना, हो सके तो। आपको अलाउ करना पड़ेगा सर। मैम अलाउड हो शायद आप, जस्ट अ मिनट, नहीं है आपका सर। मैंने बंद किया था शायद। यस आप देखिए। हाँ ओके। तो सर मैं आप आज के जो सेशन से मैंने समझा वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं तो लोग एंगेज रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है, तो वो एंड तक जब हमें हमारी प्रोडक्ट पिच करनी है तब तक हम उनको खींच सकते हैं वेबिनार में। ये एक समझ में आया है आज मुझे। और कुछ चीजें जो आप लोगों ने फेस की और आपने हमारे साथ शेयर किया कि जैसे डायरेक्ट अगर लिंक भेज देते हैं तो बेमतलब के लोग हमारे वेबिनार में आ जाते हैं, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई हमारे वेबिनार में ना आए इस तरह का हमें सेटिंग करना है। तो डायरेक्ट वेबिनार लिंक ना चला जाए, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। तो ये चीज मैं ध्यान रखूंगी मेरे वेबिनार में। और एक बहुत अच्छी चीज लोकमान सर ने कही कि वेबिनार में हमारा फ्लो बनते रहना चाहिए और वो फ्लो इस तरह से जाए कि नहीं ज्यादा स्लो और नहीं ज्यादा फास्ट, और एक ही पॉइंट के ऊपर हम पकड़ के ना चलते रहे, फटाफट से मूविंग होते रहे ताकि लोगों को लगे कि ये लोग बहुत नॉलेज शेयर कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, ऐसा उन्हें लगे। और सच में हम जितने अगर पेड है वेबिनार तो जितने का वेबिनार है उससे से कम डबल वैल्यू उनको देनी चाहिए। तो हम जितना देने वाले हैं उससे आधी कीमत ही रखनी चाहिए वेबिनार की, ये भी अभी समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कोई और जो आपने शेयर करना चाहे कि क्या आप सीखे इस वेबिनार में जो अपने आप चेंज करेंगे? कोई और बोलना चाहे वीडियो ऑन करके?
सर ये व्हाट्सएप रेगुलर यूज करना, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस यूज करो तो फायदा रहेगा उसमें सर आपको। चलिए, एक चीज आपका ध्यान रखना है, आप जब आप ट्रेनिंग में हैं तो कोशिश कीजिए इक्विपमेंट आप अच्छे लें। वॉइस रिकॉर्डर आपके पास अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड अच्छी जाए, क्योंकि जब मैं वॉइस आप बोल रहा हूँ तो मेरा पंखा चल रहा है कस के, उसकी भी आवाज आप देख नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, लाइटिंग अच्छी हो। और सेकंड, जब भी आप कपड़े पहन के बैठे तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे हो, बट एटलीस्ट ऐसे हो कि जो वेबिनार में आप बता सको, और खास एक प्रॉपर सेटअप में आप बैठे, ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइप का कैमरा यूज कर रहे हैं एंड ऑडियो, ताकि आपका जो आवाज ऑडियंस क्लियरली सुन पाए, आपकी जो प्रेजेंस ठीक दिखे। इसमें लाइटिंग और इक्विपमेंट दोनों का बहुत रोल है। ठीक है, और इसमें बहुत मतलब आप डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। उससे क्या है कि क्वालिटी ऑफ आप वेबिनार बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सर आप जो हेडफोन यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं सर? मैम ज़ाबरा का हेडफोन है, ज़ाबरा। ठीक है, ये आप समझ देगा, इसमें मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, मैं केवल इससे सुन पा रहा हूँ आपको बस। ठीक है, बोल मैं इससे रहा हूँ, सुन मैं इससे रहा हूँ। आप अंदाजा देख सकते हो इसमें। आप देखना, अभी मैं बोलूंगा अभी मेरी आवाज इससे आ रही है, आप आवाज में अंतर आप देख पा रहे हो, अभी मेरी आवाज इससे आ रही है। ठीक है, अब मैं आवाज इस बड़े वाले माइक पे करूंगा, अब आप देखिए मेरी आवाज इस बड़े वाले माइक पे आ रही है, तो आवाज की गहराई में आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सुनने के लिए यूज करता हूँ और ये वाला बोलने के लिए यूज करता हूँ। हाँ वो तो येती का है ना, वो मेरे पास है, मैंने मंगवा लिया। ये हम ज़ाबरा का लिया है, हमको 3,500-4,000 का होगा अप्रोक्स, मतलब देख लेना आप। सर लिंक भेज देंगे? यस ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैम आपको, मुझे व्हाट्सअप कर देना आप बस जैसे भी। ठीक है, जी जरूर जरूर, आपका पर्सनल में ही कर दूंगी मैं मैसेज। मुझे पर्सनल नंबर पे कर देना है, तो कॉल कर लेना मेरे को अभी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कल कितने बजे कॉल करूं सर आपको? अभी कॉल कर लो, मैं बता दूंगा आपको ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए वेबिनार खत्म होते ही करती हूँ आपको। और कोई सवाल आप लोगों का? चलिए मैम, इसमें सेम जो जूम लिंक को आप दोबारा ऑन करोगे तो आपकी दोबारा एंट्री हो जाएगी, तो हमको ऑनलाइन बता दूंगा कि कौन सा आपको माइक यूज करना है। अभी मैं इसको एंड करता हूँ, सेम जूम लिंक से दोबारा जूम क्लास में आ जाना है। किसी और को चाहिए तो आप भी ऐप आ सकते हो। ठीक है, वेबिनार अभी खत्म कर रहा हूँ, यही जूम लिंक दोबारा एंट्री कर सकते हो, मैं तो बता दूंगा कौन सा आपको ये लेना है, कौन सा माइक लेना है। ठीक है ओके, थैंक यू सत्या जी, थैंक यू।